بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آر یو لسننگ؟ میں آپ کی آواز سننا چاہوں گی. سلام کے جواب میں پلیز. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. آمین. اوکے تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا سیشن پورے ایک ہفتے کے بعد. آئیے قرآن سمجھتے ہیں، وہ بھی آسان طریقے سے. اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے کورس 1 یعنی کہ 50% سے زیادہ الفاظ تقریباً قرآن کے سمجھ لیے، نماز کو سمجھ لیا، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کی توفیق سے کورس 2 کا آغاز کر لیا. آج ہم سیکنڈ سیشن کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کیا ہے؟ کورس 2 کا جو یہ حصہ ہے جو ابھی میں شروع کرنے والی ہوں وہ ہے قرآن کا صفحہ نمبر 1 اشارہ سی. جیسے کہ ڈیٹیل آپ کو سمجھائی گئی تھی، ہم ابھی اس کو دیکھیں گے، اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. تو بغیر تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آج ہمارے جو 2 لیسنز ہم مکمل کرتے ہیں اینڈ یو نو کہ قرآن کے دونوں لیسنز میں ایک ساتھ کرواتی ہوں، آخر میں گرامر کے دونوں لیسنز کرواتی ہوں. ان کے درمیان میں ایک اور بھی بہت ہی خاص چیز ہے جو ہمیں اسٹڈی کرنی ہے. تو آپ کی بہت توجہ چاہیے اور ہم وقت کا بہت ہی دھیان رکھیں گے اور ہم آگے بڑھتے ہیں. لیٹس سی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ پروگرام، یہ ایفرٹ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے الفلاح منزل کی طرف سے، جو کہ E11 اسلام آباد میں موجود ہے. اور آپ لوگوں میں سے جتنے لوگوں کے لیے ممکن ہو آپ لوگ یہاں ضرور وزٹ کریں، آئیں اور دیکھیں کہ سسٹم کتنا بہترین کام کر رہا ہے. ضرور انسپریشن ملے گی اور اسی طرح سے ایفیلیٹڈ ہو کر اس سسٹم سے آپ جہاں بھی ہیں وہاں ایک سسٹم بنا سکتے ہیں اور وہاں بھی الفلاح کی طرح کام کر سکتے ہیں، جس کے لیے الفلاح ہمیشہ ویلکم کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، ہر طرح کی مدد فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے اور ویژن کو کبھی مت بھولیے کہ ہمارا جو مقصد ہے، گول کو ذہن میں رکھیں گے. لیٹ می جسٹ ٹرن آف مائکس کیونکہ ہم لمیٹڈ ٹائم میں پڑھتے ہیں اور خاموشی بہت ضروری ہے. سو میں AQT سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ مائک جو ہے ان کو آف کر دیں. آئی ریکویسٹ. تھینک یو. سو ویژن یہ ہے کہ ہم سب نے جو قرآن سمجھنا ہے، قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتے ہوئے ہمیں اسلامک امہ کو واپس آنا ہے اپنی حقیقت کی طرف. انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات کو 24/7 اپنی لائف میں لانے کی پریکٹس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، دعا بھی مانگنی ہے انشاءاللہ. اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے. اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی کنڈیشنز نہیں ہے کہ بہت ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے یا مطلب بہت زیادہ ٹائم آپ کو اس کے ساتھ ٹائم تک جڑے رہنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے. سب کو بلائیے، سب کو کہیے. صرف جن کو اردو پڑھنا آتی ہے، جن کو قرآن کی تلاوت آتی ہے، ماشاءاللہ سب مسلمانوں کو آتی ہے، تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے آگے بڑھتے ہیں ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ کی طرف. اللہ کا کرم ہوا کہ ہم نے پارا 1 کا آغاز کر لیا ہے. کورس 1 میں بہت زیادہ سوالات آتے تھے اور اس میں یہی تھا کہ ہم تو قرآن سمجھنے آئے ہیں لیکن یہاں پر ابھی نماز اور نماز کے ساتھ کچھ صورتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن ہم سیکوینس میں کب سیکھیں گے؟ تو الحمدللہ کورس 1 کے بعد کورس 2 کے ساتھ ہم نے باقاعدگی سے سیکوینس میں آیات کو سمجھنا شروع کر دیا ہے اور یہ سلسلہ اگلے چند کورسز تک چلے گا. اس کے بعد جو کورس 6-7 ہوں گے ان میں باقاعدہ پورا قرآن مکمل ہوگا الحمدللہ. ان میں ٹائم بھی تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ظاہر ہے، رائٹ. تو یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پارا 1 سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ پر مشتمل یہ 20 صفحات پارا 1 کے ہیں، رائٹ. اور اس میں سے پہلے 5 صفحات جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کورس 1 میں پڑھ رہے ہیں، دوسرے 5 صفحات کورس 2 میں، اس کے بعد والے 5 صفحات یعنی 11 سے 15 کورس 3 میں، اور 16 سے 20 تک کے جو صفحات ہیں وہ ہم کورس 4 میں انشاءاللہ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم بات کرتے ہیں ابھی کے کورس کی، یعنی پہلے 5 صفحات. جنرلی ہمارے ذہن میں ویو ہونا چاہیے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے قرآن کے آغاز میں ہی. آج ہم اس بات کو سمجھیں گے بھی بہت اچھے سے انشاءاللہ. اور متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کیا جا رہا ہے
हिदायत को। डिटेल तो मैं भी नहीं बताऊंगी, वो हम साथ साथ देखेंगे। और सफ़ा नंबर 5 में आदम अलैहिस्सलाम जो कि पहले इंसान हैं, उनको हिदायत दी गई, इस बारे में ज़िक्र है, तो इंशाल्लाह हम समझेंगे। और जब हम मुसहफ़ कुरान को ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें पेजेज़ इसी तरह से नज़र आते हैं। पेज 1 हम समझ चुके हैं कि सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा के की जो शुरू की आयत हैं, उनको मिलाकर है। और पेज नंबर सफ़ा 2 और 3 इकट्ठे आते हैं। फिर नेक्स्ट पेज आप जब टर्न करते हैं, तो पेज नंबर 4 और 5 इकट्ठे आते हैं। इसी तरह से हम इनको समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आज सुबह ग्रुप में मैसेज भी किया था, सूरतुल बकरा हम शुरू कर रहे हैं, इसका आगाज़ कर रहे हैं। बकरा मदनी सूरत है और इसका नुज़ूल कब हुआ? जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना हिजरत कर चुके थे, उसके बाद हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस सूरत में जो ख़ास पैगाम है वो क्या है? वो ये कि ज़मीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अपना हकीकी नायब बनाकर भेजा है, और उस नायब को कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ही ख़ास है ये सूरा, इसके मैसेज को समझना। और सच्चा मुसलमान कैसा बना जाए, इस बारे में बात होगी। इसके कुछ अहम मज़ामीन यहाँ बताए जा रहे हैं, हम उनको शॉर्टली देख लेते हैं। क्या है वो? कुरान मजीद मुत्तकीन के लिए हिदायत है। वो मुत्तकीन क्या होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। हिदायत के बारे में हमने सूरतुल फ़ातिहा में बहुत अच्छे से स्टडी किया है। मुनाफ़िकीन और जो हक़ को झुटलाने वाले होते हैं, यानी काफ़िर होते हैं, उनके लिए नहीं है। इसको भी हम समझेंगे। जो हिदायत है, यानी जो कुरान है, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। बनी इसराइल को भी अता की गई थी, जो कि एक कौम गुज़री है मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। उनका ज़िक्र कुरान में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दी गई, जो इंसानियत के इमाम हैं, क्योंकि वो सच्चे और हकीकी मुसलमान हैं, इंतहाई फर्माबरदार हैं। हर तरह की ऑर्डर्स, जैसे भी अल्लाह ने सख्त आज़माइशें की, लेकिन वो हर आज़माइश पे पूरा उतरे। सुभान अल्लाह, उनके बारे में ज़िक्र है। तो क्या मेंशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ऐ मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हें दी गई है, लिहाज़ा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुज़ारने की फ़िक्र करो। राइट? ओके, तो ये जनरली हमारे ज़हन में आइडिया आ गया है कि इन चीज़ों को भी हमें डिस्कस करना है। सूरतुल बकरा की फ़ज़ीलत, पहले ही ज़हन में आता है कि ये बहुत आगाज़ में है। तो तवील तरीन सूरत है, बहुत सारे मौज़ूआत एक ही जगह कलमबंद किए गए हैं। और फिर सूरतुल फ़ातिहा के बाद आने वाली ये पहली सूरत है, तो इसकी जो फ़ज़ीलत है उसके बारे में ज़रा हम जानते हैं। आखिरुज़्ज़मान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 2 रोशन सूरतें हैं, एक सूरतुल बकरा और एक सूरह आले इमरान। उनको पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएँगी, जिस तरह 2 बादल या 2 साहिबान हों। सुभान अल्लाह! वो शिद्दत होगी, वो गर्मी होगी, वो तकलीफ़ होगी उस दिन की। वो क्या होलनाक दिन होगा, जिसके बारे में हम अक्सर डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, अपने सीनियर्स से सुनते हैं। लेकिन उस दिन हमें डेफ़िनेटली सहारा चाहिए होगा, तो ये दोनों सूरतें हमें हेल्प आउट करेंगी। बहुत फ़ायदे की बात है, तो हमें इनको तिलावत करना है। और ज़ाहिर है, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि असल तिलावत तो वही होती है, जो समझ कर की जाए। किसी भी किताब को समझे बगैर पढ़ा जाए, तो वो बहुत मज़ा का ख़ेज़ है। हमें इस बात को यकीनन मानना है। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। ठीक है? तो शैतान जो है, यही हमारे लिए असल चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज अ, मतलब हर वक़्त हमें वरगलाने पर लगा रहता है, अटैक करता रहता है। तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। या दूसरी तरह बात की जाए, तो शैतान जिन्नों का जो वजूद है, या जो जादू और इस तरह के जो आसेब के असरात और इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसे मामलात क्योंकि हम प्रैक्टिकली फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ें, या बहुत सारे लोगों को इसमें परेशान देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात ज़िक्र की जा रही है कि ये सूरा मुबारका बहुत ही अहम है कि इसको घर में रूटीन बनाया जाए, इसकी तिलावत की जाए, तिलावत सुनी जाए। ओके, राइट हैंड से हम समझते हैं इस सूरत को, तो किस तरह से बताया गया था? आपने इस तरीके से अ, अपने जो है हाथ की उँगलियों के साथ कुरान के पहले 5 जो पेजेज़ हैं उनको प्रेज़ेंट करना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और ये आप
कर लिया, अब इसको अपनी तरफ करके हम देखेंगे, ठीक है, राइट, इस तरह से। सो आगे बढ़ते हैं और हम अपनी तरफ करके याद करते जाएंगे, यानी पहला सफा जो हम शुरू कर चुके हैं उसमें 4 इशारात हैं जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनको शॉर्टली भी याद किया जा सकता है, यानी कि क्या मेंशन है यहाँ पर, तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। तारीफ, दुआ, अगर आप अपनी तरफ करें, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक है, ओके। और याद रखिए कि ये साथ साथ आप याद करते जाएं, ठीक है, जैसे जैसे लेसन याद हो दो दो इशारों के नाम याद करते जाएं ताकि उसके बाद हमें आयात के मज़ामीन, उससे रेलिवेंट बातें याद करने में आसानी हो। तकरीबन हर सफ़े को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये चीज़ें शॉर्टली हम देख लेते हैं। वैसे हमने कोर्स की पहली क्लास में लास्ट फ्राइडे को समझ ली थी और हर हिस्से के लिए एक इशारा रखा गया है। लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो लफ्ज़ इशारा है, इसको मज़मून इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इशारे का नाम है वो कंप्लीट मज़मून को कवर करे। हो सकता है कि पेज के 4 हिस्से किए गए हैं, उनमें से हर एक हिस्से में एक से ज़्यादा मज़मून हो, लेकिन नाम तो ज़ाहिर है एक ही हो सकता था। तो जनरल नेम पिक किया गया है, इसलिए कहा गया है कि इशारा दिया जा रहा है मज़ामीन की तरफ, लेकिन उस इशारे के अंदर इससे एक से ज़्यादा मज़ामीन हो सकते हैं, इसलिए इसको इशारा कहा गया है। इंग्लिश में आप इसको पॉइंटर्स कह सकते हैं, ठीक है? एक इशारे में एक से ज़्यादा जो मज़ामीन है वो मुमकिन है, आई टोल्ड यू, यही वजह है कि हम इन्हें इशारात कहते हैं ना कि मज़ामीन। सो दूसरी बात याद रखनी है कि डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट हिस्सों को बताया गया है और आज जो 2 इशारात हम समझेंगे वो होंगे मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात, ठीक है? और एक हिस्सा ग्रीन कलर में और दूसरा हिस्सा ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ़ इतनी सी आयत समझेंगे, लेकिन इनका मैसेज बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये 4 जो इशारात हैं ये पहले सफ़े के हैं। ओके, और होता क्या है, हम तारुफ की तरफ जाते हैं और फिर तर्जुमा आता है, शरह, यानी मुख्तसरन हम समझ लेते हैं कि इसका मैसेज क्या है, जितना हमें चाहिए। तफसीर में तो हम जाते नहीं, राइट, इतनी तफसीर के साथ डिटेल में। शरह के बाद हम डायरेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने क्या सीखा, सबक क्या मिला, फिर दुआ मांगते हैं, फ्यूचर का प्लान बनाते हैं। अस्मा और अफ़ाल जो हैं ये सिर्फ इतने से होते हैं कि जो आयात पढ़ी हैं उनमें से चंद अस्मा यानी नाम और सिफ़ के जो लफ्ज़ हैं, अगर वो वाहिद हैं तो हम उनकी जमा सीख लेते हैं, जमा है तो वाहिद, ठीक है? और वो भी सबके नहीं, चंद। इसी तरह जो अफ़आल हैं, चंद अफ़आल की चाबियाँ हम दोहरा लेते हैं, उन अबवाब के साथ जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो तारुफ़, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हम आते हैं सफ़े के तीसरे हिस्से पर, ठीक है? यानी सी पार्ट, ए, बी, सी, थर्ड पार्ट, यानी तीसरा इशारा मुत्तकीन के लिए हिदायत। आई होप आपको अब तक तो नेम याद हो चुका होगा। तो सूरतुल बकरा हम आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत मुबारका नंबर 1 और 2 शॉर्टली आप देख सकते हैं, ये इसबाक हम सीखेंगे बट विल डिस्कस एट द एंड, ठीक है? आपको जो क्योंकि बताया गया है कि बहुत सारे अल्फाज हम कुरान के सीख चुके हैं, तो यहाँ उसको प्रूफ भी किया जा रहा है। ये जो कलर्स हाईलाइट ज़रा ज़्यादा डार्क किए हुए हैं, डार्क ग्रीन, ये पूरे के पूरे फ्रेजेस कह सकते हैं, वर्ड्स, ये आपके लिए नए होंगे, थोड़ा समझना। ये जो है ये कंप्लीटली आप समझ चुके हैं, मीन्स पिछले कोर्स में। इट मीन्स कि इस पहली लाइन में आप 2 अल्फाज नहीं सीख रहे हैं, ला रैबा हुदन, दूसरे वाले में सिर्फ एक। आगे बढ़ते हैं और उनको बाकायदा देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। अलिफ लाम मीम, इसका मतलब अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, ला रैबा नहीं है कोई शक, फीही इसमें, अकेला तो हमने ये भी पहले से पढ़ा हुआ है, फीही, फीहिम, ये टेबल्स हमने QC1 में पढ़े थे। हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए। हर सतर में तकरीबन 3 नए अल्फाज हैं, यू कैन सी, और अप्रॉक्सिमेटली, और कहीं पर अगर एक आध ज़्यादा है तो दूसरी लाइन में इससे कम भी होगा।
सो जब बैलेंस करते हैं तो तकरीबन 3 ही बनते हैं, और जिनको डार्क कलर किया गया है। तो ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हिदायत है परहेजगारों के लिए। पहला मुबारक लफ्ज इस सूरा का है अलिफ लाम मीम, और अगर हम उसके तर्जुमे की बात करें तो इसका तर्जुमा जो है वो यही होता है, क्योंकि इनके जो मानी है, मफहूम है, वो दरअसल अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी ही जानते हैं। हम इसको अभी डिस्कस भी करेंगे, एंड ये देखिए ये सारे अल्फाज हम सीक्वेंस में सीखते जाएंगे। अलिफ लाम मीम, इन हुरूफ को और इससे मिलते जुलते बहुत से हुरूफ हैं जिनको हुरूफ मुकत्तयात कहा जाता है। यू कैन जस्ट सी दिस, हुरूफ मुकत्तयात मतलब जिन्हें कता करके पढ़ा जा रहा है। यू कैन सी अलिफ लाम मीम, इसको हम अलम नहीं पढ़ते, राइट। इसी तरह यासीन है, बहुत सारे अल्फाज हैं कुरान में, बहुत सारी सूरतें शुरू होती हैं हुरूफ मुकत्तयात से। ये जो हुरूफ होते हैं इन्हें अलग करके पढ़ा जाता है और उनके मानी अल्लाह ताला ही जानते हैं, तो हम इसके बारे में कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि इसका क्या मानी है दरअसल, ठीक है। तो यू कैन सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट। अच्छा, ये जो लफ्ज है ज़ालिकल किताबु, ये किताब है। कोई सिस्टर जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि ज़ालिका का मानी क्या है। जी, आप ये पढ़ चुके हैं QC 1 में, ज़ालिका का मानी जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स के लिए आप लोग रेडी रहा करें ताकि हम वक्त को बचाते हुए अपना काम मुकम्मल करें, और सबका वक्त मुझे पता है आप सबका बहुत ही कीमती है। सबने लिखा है ये, एक सिस्टर कह रही है वो। आई बिलीव हमने QC 1 में इसका मतलब पढ़ा था वो, राइट। आप वही बात करें, यहाँ तो लिखा हुआ है ये, QC 1 में पढ़ा था वो, इसका इशारा ये था ज़ालिका वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्यों आया है, ये मेंशन क्यों है, आप इसको देख रहे हैं। अज़मत के लिए यहाँ ज़ालिका का लफ्ज़ है। वैसे यहाँ हाज़ा, हाज़िही, यानी ये के अल्फाज हो सकते थे जिसका हमने ये इशारा पढ़ा था, जब अगर तर्जुमा ऐसे है। लेकिन कुरान की बात हो रही है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई मैसेज कुरान के बारे में बताते हैं या कोई ज़िक्र करते हैं तो हम कहते हैं कुरान, कुरान की बात हो रही है, कुरान वो किताब है। या हमारे अगर हाथ में भी हो ना कुरान में मजीद का नुस्खा, तो हम कहते हैं ये वो किताब है, यानी अज़मत के साथ, ठीक है। तो इसी अंदाज में अरबी में कहा जा रहा है, आप इसको जनरली इतना ही समझेंगे, ठीक है। ज़ालिकल किताबु, लेकिन जब लफ्ज़ी तौर पर अगर ये लफ्ज़ आपसे पूछा जाए क्विज़ में कहीं ज़ालिका, तो आप इसका मतलब वो ही लिखेंगे, लेकिन जुमले में इसका मानी ये आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं ला रैबा फीही, कुरान में किसी तरह का शक व शुबा नहीं, ये बात यहाँ साबित हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगाज़ में ही फरमा रहे हैं कि शक नहीं करना, अभी तो तुम शुरू कर रहे हो कुरान को, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। या तो शक होता है या फिर यकीन। ऐसे नहीं कि मुझे थोड़ा-सा यकीन है, थोड़ा-सा शक है, ये नहीं होता। जहाँ यकीन होता है वहाँ डाउट नहीं होता। तो अल्लाह ने खुद फरमा दिया ला रैबा, ला नहीं, रैबा शक, कोई शक, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कुरान मजीद के जितने नुस्खे, जितनी किताबें हमारे पास होती हैं, उन सब में क्या होता है, उनमें हर जगह ये मेंशन होता है कि इस एडिशन को आप, इसमें अगर कहीं आपको कोई कमी कोताही नज़र आए तो आप हमें इन्फॉर्म करें, जबकि उसे बहुत दफ़ा चेक करने के बाद उसकी कॉपीज़ की जाती हैं, उसके बावजूद, ठीक है। तो ये डेफ़िनेटली ये प्रोसेस चलता आ रहा है, और इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। पहली आसमानी किताबें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की ही थी, लेकिन लोगों ने उसको बदल दिया। कुरान के बारे में अल्लाह के प्लान्स, अल्लाह के अहकामात कुछ और थे, कुरान को कोई बदल नहीं सका, ना ही कोई बदल सकेगा। सो ये सच्ची किताब है और इस पर हमें यकीन है, इसके तमाम मैसेजेस पर भी, ठीक है। एंड फ़ीही, इसमें, फ़ीही, फ़ीहिम, इसको एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो कि परहेज़गार हैं। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं मुत्तकीन, ये जमा है या वाहिद है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ। ये जो परहेज़गार के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी ये वो लोग होते हैं अल्लाह के फ़ेवरेट लोग। ये जमा है माशाअल्लाह। तो आपके ख़्याल में इसका वाहिद क्या होगा? इसका वाहिद होगा मुत्तकिन, राइट? यानी मीम, ता, क़ाफ, ठीक है। सो हम इसको अभी बल्कि आगे देखेंगे, वी विल डिस्कस। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनके दिल में तकवा होता है, अल्लाह के फेवरेट लोग, यानी तकवा जिसको हम डर भी कहते हैं। किस चीज़ का डर?
اللہ ताला तो से डरने की क्या बात है? अल्लाह तो बहुत प्यारे हैं, प्यार करते हैं, रहीम हैं। यानी इंसान जिससे मोहब्बत भी करता है ना, तो ये डर होता है कि वो उससे बिछड़ ना जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। तो जिस इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, वो ऑब्वियसली इस बात से डरेगा कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो। और अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, तो और अल्लाह ने मुझे सज़ा दी, तो मैं तो उसको सह भी नहीं सकता। तो जिसके दिल में ये बात होती है, ये डर होता है, वो हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है, अवॉइड करने की, जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस हो। तो ये होता है तकवा वाला दिल और उस इंसान को मुत्तकी कहते हैं। और यहाँ मुत्तकीन की बात हुई है, यानी वो सब लोग जो परहेज़गार हैं, जिनके दिल में तकवा है, ठीक है? तो वैसे तो आपके ज़हन में भी आएगा, सब कहते हैं कि कुरान से कोई भी हिदायत ले सकता है, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, साइंटिस्ट्स जिन्होंने अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत बनाया हुआ है कुरान को, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चल गया है कि ऐसी पता चलती हैं जिनको वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो कायनात में प्रूफ हो जाती हैं, राइट? लेकिन उसके बावजूद वो इस्लाम पर नहीं आ रहे हैं, राइट? तो क्या है असल में ये बात, कुरान से फ़ायदा सबको हो सकता है, सब सारी इंसानियत के लिए है। सिर्फ मुसलमान नहीं, सबके लिए। लेकिन उससे फ़ायदा हासिल वो कर सकते हैं, ठीक है? पढ़ना इज़ समथिंग एल्स। हासिल वो कर सकते हैं फ़ायदा, हिदायत, गाइडेंस, जिनके दिल में तकवा होता है। ये मतलब है एक्चुअली इस आयत का, ठीक है? सो अम, क्या अभी हमारे ज़हन में होना चाहिए, ये फ़िक्र हर मुत्तकी को होती है कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है? और हिदायत कितनी अहम है, किसी 1 में बारहा इसका ज़िक्र हुआ, सूरतुल फ़ातिहा में। ठीक है? और हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर हिदायत चाहिए, क्योंकि हिदायत का मतलब गाइडेंस है। कोई भी काम करना है तो वो कैसे करना है, ठीक है? उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया है और वही हिदायत है, ठीक है? तो जब हमें अपने गोल्स हमारे वाज़ेह होंगे कि हमारी मंज़िल क्या है, हमें पहुँचना कहाँ है, हम किस लिए कर रहे हैं कुछ, तो ज़ाहिर है आसान होगा गुमराही के रास्ते को छोड़कर दुरुस्त राह पर चलना, इंशाअल्लाह, ठीक है? तो हमने इन लफ्ज़ों को जाना इनके बारे में और पता क्या चला? अगर हम रनिंग ट्रांसलेशन पर आएँ, बामुहावरा तर्जुमा, अलिफ लाम मीम ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सी देर में हमने आगाज़ कर लिया, बहुत ही खुशी की बात है कि पहली 2 आयत को हमने जान लिया। तो 3 सबक हमें मिले हैं सिस्टर्स, कुरान में कोई शक नहीं, पहली बात, पल्लू से बाँध लें। दूसरी बात, कुरान हिदायत की किताब है। ये ऐसी किताब है जिससे गाइडेंस मिलेगी। जिसके लिए हम मारे-मारे फिरते हैं, हमारा मसला है, ये मसला हल नहीं हो रहा, वो गाइडेंस हमें कुरान से मिलेगी, ठीक है? और मिलती किनको है तो सबके लिए, लेकिन कौन हासिल कर पाते हैं? मुत्तकी। तो मुत्तकी होना ज़रूरी है, ठीक है? इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ए अल्लाह, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का, तकवा का, पाक-दामनी और बेनियाज़ी का। सुभान अल्लाह! यानी हिदायत अता कर मुझे, तकवा वाला दिल कर दे, पाक दामन बना और बेनियाज़ कर दे। सिर्फ़ अपना मोहताज रखना, किसी और का नहीं, और किसी तेरी रज़ा के अलावा कुछ चाहिए ही ना हो। सुभान अल्लाह! आमीन। तो इस गर्ज़ को, इस बात को दिल में रखते हुए हम इन आयात को हमने समझा है। एहतिसाब, प्लान, तबलीग सब साथ-साथ चलेगा। प्लान बनाएँगे कि वाक़ईतन इन आयात पर अमल पैरा होने वाले बने। अस्मा फ़ाइल की अगर हम बात करते हैं तो हम एक इस्म पिक कर रहे हैं यहाँ से, वेरी सिंपल, किताबुन, एक किताब, अ बुक, अ बुक, ये वर्ड बुक आप देख रहे हैं, ठीक है? अ बुक। और अगर इसकी जमा होगी तो वो क्या होगी? कुतुबुन, राइट? इसी तरह से एक और इस्म है मुत्तकीन, जिसके बारे में सिस्टर्स अभी बात करी थी। तो असल में वो मुत्तकिन, राइट? तो इसके हिसाब से इन दोनों में से जमा कौन-सी बनेगी? मुत्तकीना, 2 ज़ेर के हिसाब से। यू नो अब यहाँ हमें 2 तरह की जमा बताई जा रही है, एक तो है जमा सालिम और एक है जमा टूटी-फूटी जमा। और टूटी-फूटी जमा हम आगे मज़ीद बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, मतलब QC2 में बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह। तो उसमें ये होता है कि उसमें वो जो वाव नून और या नून वाले रूल के साथ हमने जमा बनाई थी और मुअन्नस में अलिफ ता लगाया था गोल ता को हटाकर, ये वो नहीं है, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ये सालिम वाहिद का लफ्ज़ इसमें नहीं आता। सो ये अभी हमने तरीकाकार नहीं पढ़ा, लेकिन जो भी वाहिद जमा हमें मिले, हमें वो साथ-साथ याद करने हैं, ठीक है? डोंट फॉरगेट दिस। इसी तरह इसमें इन आयात में फ़तह, नसरा, दरबा, समिअ के वज़न पर, क्योंकि कोई फ़ेल नहीं है तो हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और यहीं से हम कुछ भी और किए बगैर अब हम चलेंगे अ,
कुरान के लेसन नंबर 1D पर, यानी इससे अगला हिस्सा कुरान का। एंड यू नो जो हमारा तरीक़ाकार है क्लास का, वो ये होता है कि हम कुरान पोर्शन को एक साथ पढ़ते हैं ताकि एक ही फ्लो में चीज़ समझ आए, बजाय इसके कि हमें वो चीज़ ज़्यादा महसूस हो अलग-अलग। और फिर ग्रामर को एक साथ पढ़ते हैं, वो ज़्यादा शॉर्ट वे में और आसानी से समझ आता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। ठीक है, आई बिलीव दिस। और अच्छा देखते हैं कि क्या है। सफ़ा नंबर 1 का इशारा सी बहुत ही आसानी से सीख लिया। अब हम इसका इशारा डी सीखने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले 5 सफ़हात, पहले सफ़े का आगाज़ हम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से आधा, आधे से भी ज़्यादा हो जाएगा आज। तो इस तरह से हम इन 5 पेजेज़ को देखते हैं और ये 5 इशारात 4 इशारात हैं हर एक पेज पर। और ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है मुत्तकीन की सिफ़ात, हिदायत की बात तो हमने समझ ली, ये अब हम देखते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, मुत्तकीन की सिफ़ात। पिछली आयत जो भी हमने पढ़ी है उसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत की बात हो रही थी कि ये जो किताब है इसमें एक तो शक नहीं है और ये हिदायत है। और किनके लिए हिदायत है? उनके लिए जिनके दिल में तकवा होगा। दैट्स इट। ठीक है? अगली बात क्या फरमाई जा रही है, उसको हम देखते हैं और उसके असबाब भी हमें पता चलेंगे, खास तौर पर मुत्तकीन की 5 सिफ़ात। तो आगे बढ़ते हैं। जी, सो यस, 2 आयत हमने पढ़ ली थी। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए फ़िक्रे जो हैं वो हमें किस तरह से उनकी प्रैक्टिस हम देख सकते हैं। अलग से इनको हाइलाइट भी किया गया है। एंड यस, यू कैन सी दिस। बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينफिकून। राइट, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज और उससे जो हमने उनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह। लदीना, जो लोग युमिनूना, ईमान लाते हैं, बिलगैबी, गैब पर, व युकीमून अस्सलाता, और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उससे जो हमने उनको रिस्क दिया है वो खर्च करते हैं। अल्लज़ीना, जो लोग, इसका इसका इशारा जो है इट्स फाइन, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इसका वाहिद कोई बताएगा मुझे ज़रा चैट बॉक्स में? अल्लज़ीना का वाहिद हमने इसको डिस्कस किया है कोर्स 1 में, अगर आप में से किसी को याद हो, क्योंकि ये भी कुरान में अल्लज़ीना भी बहुत आते हैं और वाहिद भी। अल्लज़ी, सिस्टर समारूख, माशाअल्लाह। अल्लज़ी, यानी जैसे हम कहते हैं ना वो जो ऐसा करता है, किसी एक शख्स की बात होगी तो हम कहते हैं अल्लज़ी, और अगर ज़्यादा की बात होगी तो हम कहेंगे अल्लज़ीना, वो ज़्यादा लोग जो ये करते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब है अल्लज़ीना जमा है। ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करें युमिनूना, राइट? तो क्या है? ईमान लाते हैं। अब ये यहाँ पर 2 बातें जो हैं, वो हम अगर समझ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और वो 2 बातें क्या हैं? एक तो ये कि ये है जमा, ठीक है? ये जमा का लफ्ज़ है, हमें सिंपली यहाँ पता चल रहा है। दूसरी बात, हम यहाँ जो हमें फ़िलहाल इस कोर्स में याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जहाँ-जहाँ पॉसिबिलिटी हो, पहले वाले एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो ये है कि ये मुदारे है। जैसे हम पढ़ते थे यंसुरु यंसुरूना, यफ़अलु यफ़अलूना, ठीक है? यदरिबु यदरिबूना। तो बस इतना सा समझिए, अभी हमने ये टेबल पढ़ा नहीं है और ना ही मैं आपको अभी बात बता रही हूँ, ठीक है? और जो चीज़ अभी नहीं बता रही, जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं, उनको हम पहले बात कर चुके हैं कि उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़ ना हो। हम सिर्फ़ उतनी बात करेंगे जितनी QC2 तक रिक्वायर्ड है, ठीक है? सिर्फ़ इतना पता हमें चल रहा है कि एक तो ये जमा है और दूसरा मुदारे, जैसे यंसुरूना, राइट? मुदारे का जमा। इसी तरह है युमिनूना, ईमान लाते हैं, यानी कौन? वो ईमान लाते हैं। वो कोई लोग हैं जिनकी सिफ़त बताई जा रही है। तो ये इस्म है, ये भी हमें पता चल रहा है, ठीक है? इसी तरह से अगर हम आते हैं बिल गैबी पर, तो हम देखते हैं गैब पर बी और अल गैबी, राइट? और बी बिस्मिल्लाह से हमने पढ़ा था, लेकिन हमने ये भी रूल्स पढ़े थे कि हुरूफ जो हैं वो कंडीशनली उनके मानी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील भी हो जाते हैं। हुरूफ के बारे में 4-5 बातें भी हमने सीखी थी, उनको रिमाइंड ज़रूर करते रहें। तो यहाँ ज़रूरत के मुताबिक क्या आएगा? गैब पर, यानी वो चीज़ें जो गैब हैं। हर चीज़ हमें नज़र नहीं आती, राइट? जिसको हम डिस्कस भी करते हैं अभी। जब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वयुकीमून अस्सलाता। सो यू पीपल कैन सी कि यहाँ पर भी वा और युकीमूना
ये भी युमिनूना की तरह क्या है, जमा है, एक तो 4 उंगलियों से इशारा होगा, दूसरा क्या है, मुदारे है, यानी वो कायम करते हैं। बिल्कुल युमिनूना वाली ग्रामेटिकली कंडीशन इसकी वही है। बाब कौन-सा है और वो सब चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो नेक्स्ट लेवल है, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना हमें पता चल गया, तो हमें कितना फ़ायदा हो रहा है और यहाँ भी पता चल रहा है ईमान लाना एक काम है। तो ये फ़ेल है, फ़ेल से आगे फिर हमने इसको टेबल्स में समझ लिया। युकीमूना कायम करना कुछ, कोई क कर रहा है, किसी ने कायम किया, कोई करेगा, कोई कायम करने वाला है। तो ये सारे वर्ब्स हैं, फ़ेल, काम। तो हमें पता चला कि इसमें टेबल में हम इसको देखेंगे तो ये मुदारे है, ये जमा है। वेरी सिंपल। अस्सलात किसमें आएगा? नमाज़ में। इसकी एक पहचान हम ये भी देख सकते हैं कि अलिफ लाम है या फिर तर्जुमे के साथ भी हमें इसका आइडिया हो रहा है। सो वेरी सिंपल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं मोमिनीन मुत्तकीन की सिफ़ात बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है, पहली सिफ़त बताई गई है कि जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और दूसरी कायम करते हैं नमाज़। तीसरी क्या बात कही जा रही है? व मिम्मा। अगर आपको इसके टुकड़े अलग करने हों, हर लफ्ज़ को, तो वो इस तरह से होगा। मिन और मा को मिलके हमेशा कुरान में हम देखते हैं, मिम्मा आया होता है। मिन से मुराद है से, मा जो। तो तर्जुमा कुछ ऐसे बनता है, उससे जो, काइंड ऑफ, ठीक है? और उससे जो रज़क़नाहुम, हमने उनको रिज़्क दिया है। अब ये रज़क़ना हमने QC 1 में पढ़ा था, यकीनन पढ़ा होगा, है ना? याद है आपको या नहीं पढ़ा? कोई मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताएँ, रज़क़ का टेबल हम पढ़ चुके हैं QC 1 में? नहीं पढ़ा, दैट्स राइट। जो पुरानी वाली हमारी QC थी ना अब से कुछ साल पहले, अगर आप उसमें आते, उसमें आई थिंक 40 अबव टेबल्स थे। पता है आपको? मैंने जब स्टार्ट किया था स्टूडेंट तो मैंने वो पढ़ा था। फिर आप लोगों के लिए किताब को और आसान कर दिया गया, सिर्फ़ 11 टेबल्स हैं। सुभान अल्लाह! सो पहले वाले रज़क़ा का टेबल उसमें मौजूद था, बट एनीवेज़ हम डिटेल में नहीं जाएँगे। रज़क़ा का मतलब होता है उसने रिज़्क दिया, रज़क़ू, ठीक है? इसी तरह से चलते-चलते रज़क़ना, हमने रिज़्क दिया। हमने, ये जो ना हमें बता रहा है, ठीक है? जैसे किताबुना, राइट? तो रज़क़ना हमने रिज़्क दिया, फिलहाल आप इतना समझें। हुम, उनको, राइट? ये भी हम पढ़ चुके हैं, हुआ, हुम, हु, हुम में, राइट? हमने रिज़्क दिया उनको, कौन फरमा रहे हैं? ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने, वो लोग जिनको हमने रिज़्क दिया, युनफ़िकून, वो खर्च करते हैं। अब यहाँ भी वही पोज़ीशन है जो युमिनून और युमिनूना और युकीमूना की है। युनफ़िकूना, वो खर्च करते हैं। तो खर्च करना एक काम है, पता चल गया ये फ़ेल है। फिर ये एक जमा भी है और मुदारे भी है। इसका इशारा, इसका मतलब ये होगा। वेरी सिंपल, ठीक है? तो बस इतना जानना यहाँ ज़रूरी है। आगे मज़ीद इनको देखते हैं तो सुब्हान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की पहली सिफ़त बताई है। क्या है पहली सिफ़त? कि वो ईमान लाते हैं गैब पर। इससे एक बात पता चल रही है कि हमारे, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ आश्कार हो जाए, हमारी आँखों के सामने। अगर हमें अपनी समझ पर बहुत ज़्यादा मान है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम हर चीज़ को समझ नहीं सकते। हम उतना ही समझ सकते हैं जितनी कैपेसिटी हमारे पास है। हाँ, यकीनन बहुत ज़्यादा है, उससे हम कम समझते हैं पूरी लाइफ़ में, कोशिश ही नहीं करते। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ नज़र आए, हर चीज़ की हिकमत समझ आए, हर चीज़ की वजह पता चले, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है। जो मुकम्मल और दुरुस्त इल्म है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, ठीक है? तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं दीन में ये बताई गई है बात, इसकी लॉजिक क्या है कि हम इसको मानें? तो जान लें कि लॉजिक ज़रूर है, अगर अल्लाह ने फरमाई है, अल्लाह के नबी ने ऑथेंटिक बात पता चली है आपको, कुरान से है तो इसकी वजह ज़रूर है, हमें समझ नहीं आ रही। तो गैब की चीज़ों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। हवासे ख़म्सा हमारे महदूद हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, यानी सेंसेस जिनसे हम महसूस करें, मटीरियलिस्टिकली देख सकें। हम अल्लाह को भी तो नहीं देखते लेकिन मानते हैं, ठीक है? हम रिश्तों को, किताबों को, अ, यहाँ स्लाइड पर भी है, रसूलों को, आखिरत, अच्छी-बुरी तकदीर, सब मानते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है, राइट? तो ये क्या है? ये गैब पर ईमान लाना है और वही बात कि जहाँ ईमान है, वहाँ फिर शक नहीं है। ईमान मतलब पूरा यकीन, मान लिया कि ऐसा ही है, राइट? तो अल्लाह ताला पहली सिफ़त बता रहे हैं कि ये मोमिनीन की पहली सिफ़त है। दूसरी क्या है कि वो नमाज़ को कायम करते हैं। माय डियर सिस्टर्स, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताइए, सलात कुरान में बहुत दफ़ा हर जगह इस्तेमाल हुआ है।
नमाज का लफ्ज कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। हम जो लफ्ज नमाज पढ़ते हैं वो दरअसल कौन सी जुबान का लफ्ज है? एनीबडी कैन टेल इन चैट बॉक्स? प्लीज बी एक्टिव इन चैट बॉक्स ताकि जल्दी से शॉर्ट आंसर्स दे सकें। आपका आइडिया, आई थिंक उर्दू सिस्टर हमारा कह रही है, कोई और बताएगा हमें? जी, पर्शियन है सिस्टर समारूख, वेरी मच फाइन, शी इज राइट। अरबिक नहीं है सिस्टर, ये पर्शियन है। नमाज तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन वो टर्म जो अल्लाह और उसके रसूल ने इस्तेमाल किया उससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। अगर हम सलातुल फज्र कह दें तो बहुत बेहतरीन होगा। एनीवेज, नमाज कायम करते हैं, सलात कायम करते हैं, और हमारा यही होता है नमाज पढ़नी है। कुरान में तो हर जगह कायम करने का जिक्र है। एनीवेज, ये एक डिबेट भी हम इसको कह सकते हैं, और उसको लेकर आना लाइफ में, उसके जो मकसद है उसको पूरा होना। नमाज जो है वो तकवा को बढ़ाता है। दिन में 5 बार अल्लाह के सामने जाना ऑब्वियसली दिल में तकवा को बढ़ाता है। ठीक है? हमारा ईमान मजबूत होता है। सुभान अल्लाह। तो पाबंदी बहुत ज़रूरी है, उसका क़याम लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अल्लाह के सामने हर वक़्त हाज़िर रहना अपनी लाइफ में, यही सिखा रही है हमें नमाज़, और अल्लाह के सामने झुके रहना, अल्लाह के अहकामात के सामने। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बता दी कि ये जो खूबी है, ये भी मेरे मुत्तकी लोगों में होती है। ठीक है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और उससे जो हमने उनको रिज़्क दिया है वो खर्च करते हैं। थर्ड एट्रिब्यूट कह सकते हैं, क्वालिटी मुत्तकी शख्स की क्या है? ये स्टेटमेंट मुझे पसंद भी बहुत है, मैं आपको बताती हूँ अभी क्यों। यानी वो ना ज़कात देते हैं, मतलब वो खर्च करते हैं। इसका मतलब ज़कात तो उन पर है ना, जिन पर एक ख़ास नसाब आता है कि उनके पास इतनी दौलत है, इतना माल है और उसको जमा किए हुए 1 साल हो गया, तो वो उसमें से 22.5% या जो भी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर होता है उतनी ज़कात देंगे। लेकिन यहाँ अल्लाह ने कहा है जो भी हमने उनको दिया है, यानी जितना कुछ दिया है उसी में से अल्लाह के रास्ते में दो। अगर हम यही सोचते रहें कि हम साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, तो इस साहिब इस्तिताअत होने में तो शायद हमारी ज़िंदगी गुज़र जाए, तो हम इस नेकी से महरूम रह जाएँगे। तो एक इंसान को अगर हमें कि ₹100 है ना, तो उसमें से भी चंद दे देने चाहिए, अपने रब के लिए, रब की रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह। और ये जो मैंने कहा मुझे पसंद है, इतनी प्यारी बात है कि अपना माल, अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में ना माल और औलाद की बड़ी मोहब्बत रखी है, और फिर आज़माइश में भी डाला है कि इन दोनों की मोहब्बत से ज़्यादा मेरी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, ठीक है? और यहाँ हमें, या मुझे या आपको या सबको अपने माल को किसी को देने में बड़ा मसला होता है कि मेरी दौलत है, मैंने मेहनत से कमाई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं, किस चीज़ का मान है तुम्हें? ये रिज़्क तो हमने ही तुम्हें दिया है। और यहाँ अल्लाह ने वो बात वाज़ेह कर दी कि वो अगर तुम देते भी हो ना मेरे रास्ते में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा अपना थोड़ी है, तुम्हें तो मैंने ही दिया है। ये जो अल्लाह के फरमाने का जो अंदाज़ है, ये मुझे बहुत पसंद है कि इस बात को क्लियर कर दिया। तो हम, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए माल देना, सिर्फ़ हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो चीज़ हमें मिली है, ये अल्लाह की दी हुई है, हमारी अपनी है ही नहीं। यानी हमें, हमारा कोई फ्रेंड हमें कोई चीज़ दे और वापस हमसे कुछ माँगे या कहे कि इसमें से थोड़ा-सा किसी और को दो, हम कहें हम नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने ही हमें दी है, और कहा जा रहा है कि इसमें से तुम मेरे बंदों को दो मेरी रज़ा के लिए, और हम उस पर काबिज़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया जो हमने रिज़्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेहतरीन बात है, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फरमाए। सो याद रखें, हिदायत का रास्ता जेब से होकर जाता है। यानी अपनी प्यारी चीज़ को कुर्बान करना होता है, ठीक है? और हमने पढ़ा भी है नमाज़ में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो इबादत के लिए ज़रूरी है कि जो भी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, उन सब में से खर्च किया जाए। और माल तो है ही, ऑब्वियसली अल्लाह का तोहफ़ा है, तो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। ये आज़माइश है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आयत मुबारका जो हम समझ रहे हैं, वो क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ, और जो नाज़िल किया गया आपसे पहले, और आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, ये वही है वाव और अल्लज़ीना, अल्लज़ी की जमा है। युमिनूना वो ईमान लाते हैं, ये वही ईमान लाना एक काम है, यानी ये फ़िइल है, ये जमा है और ये मुदारे है, यानी वो ईमान लाते हैं। एक होता तो हम कहते वो ईमान लाता है, लेकिन अभी हमने ये टेबल पढ़ा नहीं है। बिमा उस पर जो, बी और मा मिलकर बना है, उस पर जो, किस पर? उनज़िला
इलैका, उनजिला नाजिल किया गया। ठीक है, इसका बाब क्या है, इसका टेबल क्या है, हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ये टेबल हमने बिल्कुल स्टडी नहीं किया है, बट लफ्ज़ से ही पता चल रहा है क्योंकि उर्दू से मिलते-जुलते ये अल्फाज़ हैं कि नुज़ूल की बात हो रही है, नाज़िल होना, मतलब आसमान से कुछ दिया गया, पेश किया गया, नाज़िल किया गया। इलैका, ये हमने टेबल पढ़ा हुआ है, इलैही, इलैहिम, इलैका, आपकी तरफ, ठीक है? तो डायरेक्ट ये बात किन्हें कही जा रही है? यानी जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ, अल्लाह ताला किनको कह रहे हैं ये? आपकी तरफ। किनसे बात हो रही है? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ठीक है? डायरेक्टली, क्योंकि हर आयत उन्हीं पर नाज़िल हुई और फिर उनके ज़रिए से वो हम तक पहुँच रही है, तो उसको हमें अपने ऊपर भी समझना है कि अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, ठीक है? कि जो नाज़िल किया गया तुम्हारे नबी की तरफ और फिर तुम तक पहुँचा है, हमें इसको समझना है इस तरह से, ठीक है? व, मा और जो, मा के 3 जो हैं वो मानी है जिनमें से जो यहाँ पर समझा जाएगा, उनज़िला मिन क़ब्लिक, उनज़िला नाज़िल किया गया, मिन क़ब्लिका, मिन से, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, इसकी मिसाल है क़ब्ली और का, ये 2 हिस्से अलग हो सकते हैं। क़ब्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में हमें आता है, यानी सलातुल मग़रिब से क़ब्ल हम फ्री हो जाएँगे, है ना? यानी पहले। तो कितना आसान है, आधे लफ्ज़ तो हमें वैसे ही आते हैं पहले से, सिर्फ़ उनको पहचान करना ज़रूरी है। का, आप, ये भी लफ्ज़ हम QC1 में पढ़ चुके हैं, सुब्हान अल्लाह। तो और क्या कहा जा रहा है? वबिल आखिरती, वा और बी और फिर अल आखिरा, इसको भी हम आखिरा के बारे में भी पढ़ चुके हैं कोर्स 1 में, और आखिरत पर यानी आखिरत का दिन, ज़िंदगी दुनिया के बाद। ओके, हुम वो, यूक़िनून, वही बात कि यहाँ पर फ़िल है, जमा है और मुदारे है, वो सब यकीन रखते हैं। ठीक है? ओके, तो जमा की बात हो रही है, यकीन से बना है ये लफ्ज़। अब हम मज़ीद समझ लेते हैं। तो पहली 3 सिफ़ात अल्लाह ताला ने पहले हमें बता दी है पिछली आयत में और इस आयत में 4th खूबी बताई जा रही है। क्या है मुत्तकीन की? कि जो भी किताबें हमने आसमान से नाज़िल की हैं, वो उन पर ईमान रखते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ईमान है कि वो 3 किताबें भी अल्लाह ही की हैं और कितने सहीफ़े जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फ़रमाए, वो सब सच्चे थे, ठीक है? वो अल्लाह ताला ने डेफ़िनेटली हक़ पर नाज़िल फ़रमाए थे, ठीक है? हम सब पे उन पे ईमान लाते हैं, लेकिन हमें फ़ॉलो किताब को करना है, आखिरी किताब कुरान मजीद को, वो एक अलग बात है, वो हम सब जानते हैं उसकी वजह, राइट? लेकिन हमारा ईमान है। तो ये एक बात पता चल गई मुत्तकीन की, ठीक है? हमें अपना एहतिसाब करना है कि इंशाअल्लाह हम भी मुत्तकीन में से हो जाएँ। तो क्या फ़रमाया जा रहा है उसके बाद? अच्छा, यहाँ एक बात और बहुत ज़रूरी है, वो ये कि पिछली आसमानी किताबों और कुरान और हदीस पर ईमान लाना चौथी सिफ़त है। ईमान का ये हिस्सा नबूवत के झूठे दावेदारों और उनके मानने वालों के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देता है, जैसे कादियानी और अहमदी वग़ैरह। इसलिए कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद जो आपके बाद नाज़िल हुआ। ये जो क़ब्ल का लफ्ज़ है, इसका मतलब हम नबी को भी, नबी की किताब को मानेंगे, उसी पे अमल करेंगे, क्योंकि वो क़यामत तक के लिए है, और ईमान लाते हैं उन किताबों पर भी जो नबी से पहले नाज़िल हुई। ठीक है? बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, क़ब्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब है इसके बाद वाली कोई किताब, कोई माना नहीं जाएगा और ना ही कोई नबी है। सो ये बात यहाँ कुरान क्लियर कर रहा है, इसके बाद कोई और लॉजिक काम नहीं करेगी। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर वो सब यकीन रखते हैं। ये हम अभी इसको समझ चुके हैं। तो 5th जो बात हमें समझनी है, 5वीं सिफ़्त, वो क्या है? आखिरत पे मज़बूत ईमान ज़रूरी है। और ये इतना अहम है कि हमारी हर नेकी के लिए ज़रूरी है। जब हमें यकीन होता है कि आखिरत आएगी, तो हम आज़माइशों से भी गुज़र जाते हैं कि अच्छा दिन आएगा। हम नेकियाँ भी करते हैं, उसके लिए मुश्किलें भी बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करते हैं, अपनी सलावात कायम भी करते हैं, सारे नेक काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है आखिरत का दिन ज़रूर आएगा और हमें रिवॉर्ड मिलेगा। दुनिया में ना भी मिले, आखिरत में असल में रिवॉर्ड्स मिलने हैं। तो ये यकीन बहुत ज़रूरी है हमारे बाकी नेक अमाल के लिए भी, ठीक है? तो इसकी अहमियत भी हमें पता चल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आयत मुबारका वैसे तो अगले सफ़े पर आती है, कुरान के सफ़ा नंबर 2 पर, लेकिन क्योंकि इसका टॉपिक पिछली आयत से मिल रहा है, तो इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। उलाइका, वो लोग, और इसका वाहिद है ज़ालिका, यानी वो, और वो लोग यानी उलाइका,
यानी वाहिद जमा भी हमारे ज़हन में आ रहे हैं, ये हम कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं, ये सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं, तभी ये लाइट कलर में भी हैं। अला पर, हुदन हिदायत, यू कैन सी दिस, ठीक है। मिन से रब्बिहिम, उनका रब, यानी जुमले के फ्लो में आएगा उनका अपना रब, ठीक है। तो अपने रब की तरफ से वो लोग हिदायत पर हैं, अपने रब की तरफ से। कौन? मुत्तकी, जिनमें वो 5 सिफात हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, वो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, ये उनके रब ने फरमा दिया है यहाँ पर। उसके बाद क्या है? व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग, उलाइका यानी उलाइका का मतलब है वो सब, और हुम का मतलब भी है वो सब, ये हमने पढ़ा था यहाँ पर। वो सब एक यहाँ है और एक वो सब यहाँ है, तो जब दो वो मिले, वो तो मतलब उस बात पर जोर दिया जा रहा है, ताकीद है, तो फिर हम कहेंगे वो ही लोग, ठीक है। अल मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले, ठीक है। अब ये फलाह पाने वालों की बात हो रही है, फलाह यानी कामयाबी पाने वाले, तो मुत्तकी ही हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, सीधे रास्ते पर, और कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होगी। सुभान अल्लाह। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई, हमें हर वक़्त दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में कबूल फरमाए, और मुत्तकीन दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे, ये बात भी हमें वाज़ेह हो गई है। तो इंशाअल्लाह हम अमल पैरा होने की कोशिश करते रहेंगे। 5 सिफ़ात पता चल गई हैं, फिंगर टिप्स पर याद कर लें इन द सीक्वेंस, जो हमने सूरतुल बकरा की आयत 3-4 से सीखी हैं। 3, 4 और 5 को भी हम कंसीडर करते हैं। गैब पर ईमान लाना, नमाज कायम करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और पहली आसमानी किताबों पे ईमान लाना, बाद वाली नहीं, पहली, और आखिरत पर ईमान लाना। तो ये 5 सिफ़ात होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी मुत्तकीन में से बनाए और हिदायत अता फरमाए और हमसे राज़ी हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब, बना दे मुझे नमाज को कायम करने वाला और मेरी औलाद में से भी। ऐ हमारे रब, और हमारी दुआओं को कबूल कर ले। इंशाअल्लाह अपनी दुआ की कबूलियत की भी दुआ माँगते हैं, और ये जो भी पढ़ रहे हैं दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, चारों काम ज़रूरी हैं। याद रखिए, सलात इस्म पिक किया गया है, सलातुन, सलावातुन, और ये हमने कोर्स 1 में पढ़ा था। इसी तरह मुफ़्लिह, आखिरी हरकत मौजूद नहीं है, तो दोनों में से कोई भी जमा बन सकती है। मुफ़्लिहूना, मुफ़्लिहीना, राइट? तो देखा कि एक जमा जो है वो जमा सालिम है, और पहली वाली टूटी-फूटी जमा है। कैसा है? ये पहले वाली भी सालिम है। चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चैट बॉक्स में बता सकता है कोई कि पहली वाली जमा टूटी-फूटी है या जमा सालिम है जो कोर्स 1 में पढ़ी है? सिस्टर समा बता रही हैं सालिम है, बाकी लोग भी कोशिश किया करें। ठीक है सिस्टर नादिया, वर्दा, सालिम ऐसे है कि ये मुअन्नस वाली है, ठीक है? आखिर में गोल ता है और गोल ता को हटा के अलिफ ता आ गया, ठीक है? तो ये दोनों जमा सालिम है, वेरी सिंपल, बहुत ही ईज़ी, इनको हम याद रखते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें यस, तो रज़क़ा की टेबल की बात हो रही थी, चलें शॉर्टली हमें यहाँ मिल गया, अब हम ईज़िली इसको बना सकते हैं। और रज़क़ना से हमने देखा कि क्या बना, रज़क़ा उसने रिज़्क दिया, यर्ज़ुक़ु वो रिज़्क देता है, उर्ज़ुक़ आप रिज़्क दो, एक इंसान को कहा जा रहा है। राज़िकुन रिज़्क देने वाला, मरज़ूकुन जिसे रिज़्क दिया जाए, रिज़्कुन रिज़्क देना, ठीक है? और ये इसका बाब कौन-सा है? नून, यानी ये नून के पैटर्न पर आएगा। जैसे होता है नसरा, यंसुरु, वैसे ही है रज़क़ा, यर्ज़ुक़ु। पेश ज़रा गालिब है। मुदारे में पता चलता है कि बाब कौन-सा है, ख़ास तौर पर माज़ी मुदारे की प्यारी-प्यारी चाबियाँ पता होनी चाहिए। सो हमने देखा कि वो नसरा से मैच कर रही हैं, इसलिए वो नसरा है, यानी नसरा का फ्रंट टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम कोई ब्रेक नहीं करेंगे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि आज सिर्फ़ आज के लेसन में हमारे पास एक बहुत ही ख़ास चीज़ है समझने की। तो आई बिलीव आप लोग तो के तो माइक्स बंद हैं, आप लोग पानी-वानी पिएँ, थोड़ा वॉक करते हुए लेसन सुन लें। हाँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा है कि मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा विदाउट ब्रेक के। सो येस, जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग लाइक एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन जो आपकी बुक में भी एक जगह मौजूद है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊँगी कि कहाँ है। अगर आपको पता भी है, तो भी आप अभी बुक ओपन ना करें, आप यहाँ फ़ोकस करें। 2 अहम बातें मैं आपको बताऊँगी, ग्रामर से पहले, ठीक है? और वो 2 बातें क्या हैं?
ایک تو یہ کہ حرف دو طرح کے ہوتے ہیں، اور دوسری الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے، رائٹ؟ سمپل سی باتیں ہیں، ان کو بس آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے، اور ان کی سلائیڈ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی۔ عربی زبان میں جب ہم بات کرتے ہیں حرف، ٹیلنگ اگین، عربی میں، اردو میں بھی حرف ہوتا ہے، عربی میں حرف دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ جیسے کہ خاص طور پر ہم اردو میں حرف کہتے ہیں، جیسے کہ الف با تا سا، اردو میں الف بے پے ہوتا ہے، عربی میں الف با تا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ایک تو وہ ایک ایک حرف ہے، یہ الف حرف ہے، با حرف ہے، تا حرف ہے، سا حرف ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، ان کو حروف تہجی، حروف المفردات بھی کہتے ہیں، الفابیٹیکل لیٹرز بھی کہتے ہیں، ڈفرنٹ۔ ایک حرف وہ ہوتا ہے جو گرامر کے اعتبار سے حرف ہوتا ہے، اور وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے پڑھا تھا لفظ یعنی بامانی لفظ یعنی کلمہ، اس کے تین اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک اسم ہے، بہت دھیان سے سنیں، بہت دھیان سے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے، ایک یہ والا حرف ہوتا ہے، اور یہ کون سا ہے؟ اس میں اور الف بے تے میں فرق کیا ہے؟ یو کین سی الف بے تے سے ایک ایک الفابیٹ الگ سے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والا حرف کیا ہے جو گرامر کے اعتبار سے ہے؟ اس میں ایک پورا حرف ہے من، جس میں دو حروف تہجی والے حرف استعمال ہو رہے ہیں، یعنی میم اور نون، لیکن وہ ایک حرف ہے اور اس کا باقاعدہ معنی ہے، ہم جانتے ہیں سے، اعوذ باللہ من الشیطان والا من، ٹھیک ہے؟ تو گرامر کے حساب سے یہ ایک پورا حرف ہے، لیکن حروف تہجی کے حساب سے یہاں دو حروف ہیں۔ تو حرف کی دونوں ٹائپس آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ گرامر میں عام طور پر یہ والی ٹائپ استعمال ہوتی ہے، یہ والی گرامر والی، ٹھیک ہے؟ یہ والی ہم کم اس کا مطلب گرامر کو سمجھتے ہوئے زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، بٹ ہمارے ذہن میں دونوں ہونی چاہیے۔ اعلیٰ گرامر کے حساب سے ایک پورا حرف ہے جس کا مطلب ہے پر، یعنی حرف مطلب پورا ایک لفظ ہے، لفظ کی ایک ٹائپ جس کو حرف کہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں حروف تہجی کے حساب سے تین حروف ہیں، عین، لام، یا۔ آئی بلیو دس از ویری کلیئر، بہت ہی سمپل سی یہ سلائیڈ ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ قرآن میں جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار الف کہا جائے، اردو میں تو ضروری ہے کہ الف کہا جائے، لیکن عربی میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹریٹ لائن، اس کو یہ الف بھی ہوتا ہے اور حمزہ بھی ہوتا ہے، حمزہ اور الف دونوں کی پہچان ہے، کچھ رولز بتائے جائیں گے جس کو آپ تحمل سے سن لیں، اور اب یہ اگر آپ کو 100% یاد نہ بھی ہو تو آپ کے پاس سلائیڈز ہوں گی، آپ بعد میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، الف کی پہچان کے لیے انہوں نے یہاں پر کچھ لکھے بھی ہیں ورڈز، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک ہی لفظ میں الف سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہوگی، ایک ہی لفظ میں جہاں یہ اسٹریٹ لائن آ رہی ہے، اگر اس سے پہلے کوئی ایسا حرف ہو جس پر زبر ہو تو سمجھو یہ اسٹریٹ لائن الف ہے۔ فار ایگزامپل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں، یہ دیکھیں یہ اسٹریٹ لائن، اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے؟ میم، اور میم پر زبر ہے یعنی فتح، زبر ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹریٹ لائن الف ہے۔ از اٹ کلیئر؟ اور یہ ہے بھی ایک ہی لفظ، رائٹ؟ اور اس لفظ کے اوپر، اس اسٹریٹ لائن کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں اس اسٹریٹ لائن کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر نہیں ہے، اس کا مطلب کہ میم کے بعد آنے والی یہ اسٹریٹ لائن، اس کو ہم الف کہیں گے، حمزہ نہیں کہیں گے۔ یہ ایک پہچان ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، الف کسی لفظ کے شروع میں نہیں آ سکتا، یہ بڑی اٹس اے بگ انفارمیشن آپ کے لیے، اناؤنسمنٹ۔ کسی لفظ کے شروع میں عربی زبان میں جو آتا ہے یہ والی اسٹریٹ لائن وہ الف نہیں ہوتی، رائٹ؟ کیونکہ اوپر دیے گئے رول کے مطابق الف سے پہلے ایک لفظ کا ہونا ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو لفظ ہیں آپ کو تین نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابن، اسم، احمد، اس میں الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شروع میں آ رہے ہیں نا، یہ اسٹریٹ لائن شروع میں ہے، یہ بھی، تو یہ اس رول کے مطابق پوری نہیں اتر رہی، یعنی اس سے پہلے ایک حرف ہونا چاہیے جس پہ زبر ہو، اس کے پہلے تو کوئی حرف ہے ہی نہیں، یہ شروع میں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ تینوں اسٹریٹ لائنز جو ہمیں اردو کے حساب سے الف لگ رہی ہیں وہ الف، عربی کے حساب سے وہ الف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تھرڈ پوائنٹ یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی الف جمع کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم نے افعال میں ٹیبل بنائے تو ماضی میں، ماضی کا دوسرا صیغہ کیا تھا؟ جیسے فعلا سے فعلو
नसरा से नसरू, ठीक है, दौरबा से दौरबू, समिआ से समिऊ, इन सब के आखिर में हमने देखा कि एक अलिफ मौजूद था और बताया गया कि इसके बगैर आपका लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होता। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है? तो इससे पता चल रहा था कि ये जमा है। उन सब ने कहा, उन सब ने मदद की एंड भी बाकी भी जो आप देख रहे हैं ये जमा है, जमा की निशानी है। तो ऐसी जगहों पर भी अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में इसलिए आ रहा है कि उसके मानी को जमा बता रहा है, तो वो भी अलिफ होगा। ये एक थर्ड कंडीशन है जो आपको बताई है। इसके अलावा कुरान में जहाँ कहीं ये स्ट्रेट लाइन नज़र आए, स्ट्रेट लाइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कन्फर्म नहीं है ना अलिफ है या हमज़ा है, तो आप उसको समझ लेंगे कि वो अलिफ नहीं है, ठीक है? सो ये 3 पॉइंट्स मैं इनको बार-बार रिपीट नहीं कर रही, इट्स ओके, आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी हमें किसी को बोर भी नहीं करना, इंटरेस्टिंग वे में ज़रा कोशिश करनी है कि जल्दी हो जाए। तो हम आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि क्या बताया गया है हमें मज़ीद। ठीक है? सो यू कैन सी हमज़ा की पहचान बताई जा रही है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ सिस्टर्स, बहुत ही ध्यान से देखें, ये न्यू चीज़ है। हमज़ा की पहचान, पहला पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस शक्ल वाले अ, जो भी ऐसी शक्ल होगी, उस पर कोई हरकत होना ज़रूरी है, तब वो हमज़ा होगा। अब ये आपको इतनी सारी यहाँ पे जो है ना फ़ॉर्म्स नज़र आ गई हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, बहुत सारी, या ऊपर उठ के स्ट्रेट लाइन के ऊपर छोटा-सा हमज़ा आ गया, तो भी वो हमज़ा ही होगा, वो उसको हम स्ट्रेट लाइन को अलिफ नहीं पढ़ेंगे। ये सारी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं, अल्लाहू अकबर, द बेस्ट, द ब्यूटीफुल नेम, द बेस्ट नेम, अल्लाह भी इसका मतलब है हमज़ा से है। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है ना? सो इसी तरह ये बाकी जो अल्फ़ाज़ हैं, इनमें पता चल रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये हमज़ा हैं, ये स्ट्रेट लाइन्स अलिफ नहीं हैं। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं पहचान हमज़ा और अलिफ। अच्छा यहाँ देखें, तो आपको सिंपल सी बात तो ये है कि कहीं आपको अगर सिंपली नज़र आ रही है ये वाली फ़ॉर्म, तो ये हमज़ा होती है, और सिंपली अगर आपको नज़र आ रही है ये वाली फ़ॉर्म, तो ये अलिफ होती है। ये तो सिंपल पहचान है ना? तो इसको तो हम चैलेंज कर नहीं रहे, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरबी में जो हरूफ़ तहज्जी हैं अलिफ से या तक, वो 28 हैं, जिनमें अलिफ शामिल है। और अगर इसके साथ हम हमज़ा को भी शामिल, आई एम सॉरी, हमज़ा को भी हम शामिल कर लें, तो टोटल 29 बनते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए याद कर लें तो अच्छी बात है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, देखने में ये अलिफ है, और ये जो नज़र आ रही है, ये हमज़ा है। ये बात हम पहले से जानते हैं, हम जस्ट टेलिंग यू सिंपली। और दूसरा ये कि नोट कर लें कि जहाँ ये निशान आए, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ये निशान जहाँ पर हो, ये आपको एंड में नज़र आ रहा है स्लाइड पर, वो हमज़ा होगा, और जहाँ भी ये निशान हो, वो अलिफ होगा। ओके, जस्ट लेट मी चेक वन थिंग, सेटिंग में मुझे ज़रा कुछ चेक करना है एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, फाइन। सो ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए, ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अलिफ की पहचान क्या थी? एक ही लफ्ज़ में अलिफ से पहले अगर ज़ब वाले हर्फ पे ज़बर हो, और उस, यानी उस स्ट्रेट लाइन से पहले वाले हर्फ पे अगर ज़बर हो, सिर्फ़ ज़बर, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर-नीचे कोई हरकत ना हो, कोई ज़बर ज़ेर पेश, तो वो स्ट्रेट लाइन अलिफ है। जैसे मा, क़ाला, बाला, कमा, मरदन, ये सब आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि कभी अलिफ जमा को ज़ाहिर करने के लिए भी आ सकता है, जैसे कानू, वो थे ज़्यादा, क़ालू, ये हम आज टेबल भी पढ़ेंगे क़ाला का, वगैरह। इसके अलावा जो बाकी हैं वो सब क्या हैं? वो सब के सब हमज़ा हैं। अलिफ की पहचान में ये भी है कि अलिफ शुरू में आ ही नहीं सकता। शुरू में जब स्ट्रेट लाइन लिखी हो, तो वो समझिए वो नज़र हमें ऐसे आ रही है, असल में वो है हमज़ा। हम उसको हमज़ा पढ़ते हैं, चाहे उसके ऊपर हरकत हो या ना हो। यानी शुरू वाला तो अलिफ हो ही नहीं सकता, चाहे हरकत हो या ना हो। इस्म, इब्न, असनान, ये कुछ अल्फ़ाज़ दिए गए हैं। हमज़ा की पहचान शॉर्टली देख लेते हैं। आम तौर पर इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत होती है। कभी ये शुरू में भी हो सकता है, दरमियान में, आखिर में, इसकी कोई शर्त नहीं है। तो वाव के ऊपर भी हो सकता है, या के ऊपर भी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी, जिसके ऊपर आ जाए ना वहाँ बस हमज़ा ही पढ़ा जाता है। हमज़ा की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है ना? बहुत ही लाडला है ये, इसको इस तरह से आप याद रखें। जैसे ये जो है, ये हमज़ा है, ये भी हमज़ा है,
ये आखिर में क़रअ ये भी हमज़ा है, मुअमिनु में ये वाव नहीं पढ़ेंगे, ये भी हमज़ा ही पढ़ेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। हमज़ा की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई जा रही हैं, आप इनको तसल्ली से देखिएगा, कुरान में से बाद में ढूँढिएगा भी, ज़हन नशीन कीजिएगा, ये देख रहे हैं आप सब, ये सब हमज़ा हैं, ये जो आपको सिंपली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और इसी तरह अगर हम आगे देखें तो कुछ और भी शक्लें दिखाई गई हैं, पीपल कैन सी, राइट? फाइन, दैट्स राइट। ये देखें कुछ और हैं, ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ आ रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली हमज़ा ही हैं, इनको तो हम अलिफ कहेंगे भी नहीं। अलिफ की तो चंद कंडीशंस हैं, बाकी सारे हमज़ा हैं अरबी में, यू कैन सी। ये बड़ी अच्छी-सी एक्टिविटी हो गई है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। खुश होकर पढ़ें, एवरीथिंग इज़ ईज़ी। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है बारहा कि आसान है, सिर्फ इंटरेस्ट के साथ और अगर कोई चीज़ थोड़ी टेक्निकल लग रही है, उसको चैलेंज समझें। ठीक है? ओके, अच्छा ये एक्सरसाइज़ हम ज़रा देख लेते हैं ताकि मज़ीद आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और मैं आपसे प्रैक्टिस अभी करवाऊँगी नहीं क्योंकि आपको मैंने न्यूली बताया है एंड यू विल टेक टाइम टू फाइंड आउट तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अलिफ और हमज़ा, जो अलिफ है उनको यहाँ येलो कलर में दिखाया जाएगा और जो हमज़ा हैं उनको रेड में तो आप यहाँ देख सकते हैं अ, सॉरी ये ये जो दिखाए जा रहे हैं आपको येलो में ये सारे के सारे अलिफ हैं। अब आपको आपके पास जब स्लाइड्स आ जाएँगी तो आप इनको तसल्ली से देखिएगा और आपको ये सारी कंडीशंस अगर समझ आ जाएँ, तो देन इट मीन्स आपको रूल समझ में आ गया है। इसी तरह ये जब आप स्लाइड निकालेंगे तो जितने भी रेड हैं, ये सारे के सारे हमज़ा हैं। आपको रूल्स समझने के बाद ये बात खुद से पता चल जाएगी। अगर नहीं पता चली तो इट मीन्स आपने रूल्स को अभी प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है? सो इंशाल्लाह हम इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हम चलते हैं ग्रामर टेबल की तरफ, ठीक है? ग्रामर की प्रैक्टिस की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा आपको ये वाला टॉपिक अलिफ हमज़ा का? ज़रा मुझे अपना फीडबैक दे दीजिए चैट बॉक्स में। क्या बहुत मुश्किल था या इंटरेस्टिंग था? किसके लिए ये न्यू इन्फॉर्मेशन थी? किसको सब पहले से पता था? कैन यू प्लीज़ शेयर विद मी ताकि मुझे आपके होने का एहसास हो? इंटरेस्टिंग था, वाओ! वाओ! सब टीचर्स ही कहूँगी मैं, है ना? क्यूसी 3 में आ गए माशाल्लाह, क्यूसी 1 के तो टीचर्स ही हैं अब आप और प्रैक्टिस के लिए कॉन्टैक्ट करें मुझसे, जो क्यूसी 1 के प्रॉपर टीचर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड होना चाहते हैं या सर्टिफाइड हुए बगैर भी एक्यूटीज़ बनना चाहते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको टीचर्स कहती हूँ। सिस्टर्स कह रही हैं ईज़ी भी है और इंटरेस्टिंग भी। आसान, वेरी इंटरेस्टिंग माशाल्लाह, माशाल्लाह दैट्स राइट। आई डिडन्ट नो दिस मैं नहीं जानती थी, सच सदफ कह रही हैं, माशाल्लाह। बहुत खुशी होती है ना जब कोई नई बात पढ़ते हैं और ये अलिफ हमज़ा तो कुरान में इतने ज़्यादा हैं, तो अब हम पहचान किया करेंगे तो एक नई हमें एक्टिविटी मिल गई अब। सो मैं ज़रा टाइम देख रही हूँ और हम आगे चलते हैं ग्रामर। ग्रामर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन इन अंडरस्टैंड कुरान कोर्सेज़। इससे पहले कभी भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे, चीज़ें बोर लगती थी, ठीक है? सो अभी जो है वो बहुत ही मज़ा आया हमें क्यूसी 1 में समझते हुए, क्यूसी 2 में भी हम समझ रहे हैं, ठीक है? तो ग्रामर में आज वादा का टेबल हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताएँ, आपके ख़्याल में पिछला लेसन अगर आपने सुना है, वादा सही फ़ेल है यानी सेहतमंद फ़ेल है या कमज़ोर है? जी। कोई बताएगा मुझे? कमज़ोर है सिस्टर मदीहा और फिर बहुत सारी सिस्टर्स हमें बता रही हैं, माशाल्लाह। तो वअदा ये जो लफ्ज़ है, इसको आप और इसकी फ़ॉर्म्स को आप जब समझेंगे, तो 120 अल्फ़ाज़ तकरीबन कुरान के समझ आ जाएँगे। मुस्कुराइए और 3 बार गहरी साँस ले लेते हैं चलें, ब्रेक तो हमने की नहीं। यानी नोज़ से इन्हेल करें गहरा, जितना कर सकें, फिर मुँह से इसको एक्सहेल करें 3 बार। मैं तो फ्रेश फ़ील कर रही हूँ, आई बिलीव आप भी कर रहे होंगे। चलें, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं कमज़ोर हरूफ। कोई मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल बात नहीं करने वाली, वेरी सिंपल। पूरे हरूफ़ तहजी जो कि कुरानी कायदा में हमने पढ़े थे बचपन में उन सब में से ये जो 3 हैं, ये कमज़ोर हैं। सिंपल, याद रखिए और किसी भी फ़ेल में कोई एक कमज़ोर हर्फ़ भी अगर आ जाए, तो वो फ़ेल ही कमज़ोर कहलाता है। ये बात हमने समझ ली थी। कमज़ोर अफ़आल के बारे में 3 बातें मैंने पिछले लेसन में बताई थी। पहली बात
कोई भी कमज़ोर फ़ेल जब हम पढ़ेंगे, उसका टेबल सीखेंगे तो याद रखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि वो किस बाब से ताल्लुक़ रखता है। जो 4 बाब हमने क्यूसी में पढ़े थे, फ़ा, नून, द्वाद, सीन, उनमें से ज़रूर किसी एक के जैसा होगा। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात, ये क्योंकि कमज़ोर है, नाम से पता चल रहा है यानी काइंड ऑफ स्पेशल, ठीक है? तो एक कोई भी हर्फ़ कहीं पर भी थक जाता है और लफ्ज़ में से निकल कर गायब हो सकता है, जा सकता है। हो सकता है उसके बगैर हमें बाकी टेबल पढ़ना हो सकता है वो थोड़ी देर बाद वापस भी आ जाए, या हो सकता है दूसरा कमज़ोर हर्फ़ उसकी जगह आ जाए। तो ये कंडीशनली होगा और हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम कुछ समझ कर बाकी याद कर लें, ठीक है? क्योंकि हम एक नई ज़ुबान सीख रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी मदद भी कर रहे हैं। तीसरी बात आपको जब भी कोई कमज़ोर फ़ेल देखें याद रखनी है, वो क्या है? जब भी माज़ी के टेबल में, माज़ी, मुदारे, अम्र और फिर 3 इस्म हमने पढ़े थे ना, माज़ी के टेबल में जब भी पहला जो लफ्ज़ है यानी माज़ी वाहिद ये वाला गायब, जैसे फ़अल, फ़तह, नसरा ये, इसमें अगर आपको कहीं क्या नज़र आए? वो स्ट्रेट लाइन जो कि अभी हमने पढ़ी है, ये, तो आप समझ लें कि वो असल में उसका रूट लेटर नहीं है, मादा। जैसे नून नसरा में नून, स्वाद, रा 3 रूट लेटर्स हैं ना जिनको हम उर्दू में मादा कहते हैं। यानी इन तीनों से बन के ये लफ्ज़ बन रहा है और फिर आगे टेबल बनेगा। फ़अला में फ़ा आइन लाम है, ज़रबा में ज़ ज़रबा है। लेकिन अगर किसी कमज़ोर फ़ेल में माज़ी के पहले लफ्ज़ में यहाँ पर अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन यानी अलिफ नज़र आए, तो समझ जाएँ कि ये इसका रूट लेटर नहीं है, बल्कि या तो ये असल में वाव है या ये या है। उसकी बदली हुई हालत में फ़िलहाल हमें अलिफ नज़र आ रहा है, असल में अलिफ नहीं है। ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, बस आप इस बात को ज़हन में बिठाएँ और आज के लेसन में भी हमें कुछ ऐसा नज़र आने वाला है, तो उसमें हमें ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो वो कब वाव है, कब वो या है, ये डिफरेंट टेबल्स में बदलते जाएँगे, ये हम साथ-साथ सीखेंगे। जी, तो सेहतमंद अफ़आल और कमज़ोर अफ़आल 2 तरह के हैं। सिस्टर्स आप देख रही हैं, फ़तह, नसरा, ज़रब, समिअ। फ़तह क्या हमने इसके लिए स्टेटमेंट पढ़ी थी? अगर कुरान खोलोगे फ़तह तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी ज़रबा, इसलिए सुन लो समिअ, ठीक है? और ये तो हमारे थे, ये पूरा पैटर्न हमारा, ये पूरा जो पोर्शन है क्यूसी 1 का है। क्यूसी 2 में अभी हमें यही इंट्रोड्यूस कराए गए हैं कि ये टेबल्स हमने सीखने हैं। तो कौन-कौन से हैं 6? उनको याद रखने के लिए सीक्वेंस में हम कहेंगे अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहबा वअदा, बल्कि कहा ज़्यादा दूँगा, क़ाला ज़ादा। इसलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। एक बात मैंने पिछले लेसन में बताई थी कि ये जो डिवीज़न की गई है ना इनकी, वो कैसे है? ये इस तरह से अगर हम इन कमज़ोर अफ़आल को देखें, इस तरह से वर्टिकली, ठीक है? तो हॉरिज़ॉन्टली यू कैन सी, ये देखिए इस तरह से भी है, इस तरह से भी है। अगर आप ऐसे देखते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाबा या जो भी टेबल यहाँ आएगा, वो फ़तह के पैटर्न पर है। ये क़ाला दआ नसरा के पैटर्न पर है। वअदा ज़ादा हदा ज़रबा के ग्रुप में से हैं, ठीक है? और अगर आप इस तरह देखें तो इसका मतलब है कि वहबा वअदा कमज़ोर फ़ेल की पहली किस्म है, यानी इनका पहला हर्फ कमज़ोर है। क़ाला ज़ादा दूसरी टाइप है जिसके दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर है, और दआ-हदा कमज़ोर फ़ेल की तीसरी टाइप है जिसका आखिरी हर्फ कमज़ोर है। तो इस तरह से भी समझेंगे, इस तरह से भी। सिंपल, वेरी सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, तो ये वाहबा उसने अता किया, याहबु वो अता करता है, हब आप अता करो। वाहिबन अता करने वाला, मौहूबन जिसे अता किया गया या किया जाए, वहबुन अता करना। ये टेबल हमने तसल्ली से स्टडी कर लिया था लास्ट वीक। आज हमारे पास जो टेबल है डायरेक्ट हम पहुँच चुके हैं। वअदा कमज़ोर फ़ेल आपने पहले ही बता दिया। इसका पहला हर्फ कमज़ोर है, जैसे वहबा का कमज़ोर था वैसे ही वअदा का पहला हर्फ कमज़ोर है। उसने वादा किया, वअदल्लाहु तो हम कहेंगे अल्लाह ने वादा किया, अल मुमिनीना मोमिन मर्दों से, वल मुमिनाती और मोमिन औरतों से, जन्नातिन जन्नत का। सुभान अल्लाह! इसी खुशखबरी के साथ अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हुए कि वो हमें मोमिनात में कंसिडर करे, हम टेबल की तरफ चलते हैं, ठीक है? इस खूबसूरत वादे को समझते हुए वादा का टेबल बिल्कुल सिंपल है। आप देख सकते हैं जो पैटर्न हमारा फ़ॉर्मूला आपको एंड में नज़र आ रहा है ये देखिए की आवाज़ आती है आखिर में, वो तो आपको पता चल ही जाती है। ऊ की आवाज़ वाव और अलिफ, ता, तु, तुम, ना, राइट?
और इसमें एक चीज जो नजर आ रही है वो नई चीज वो है शद, ठीक है। और शद क्यों है, आपको पता है कि शद का मतलब है कि यहाँ पर 2 दफा ता आ रही है। जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए कुरान में, याद रखें वो 2, जिस तरह हम साइंस में पढ़ते हैं ना H2O, तो 2 का मतलब है H हाइड्रोजन 2, है ना? या स्क्वायर पढ़ते हैं मैथ्स में। इसी तरह आप डुप्लीकेशन समझ लें। डुप्लीकेशन शब्द को इंग्लिश में कहते हैं तशदीद या शद या डुप्लीकेशन। जिस हर्फ पर आए वो 2 बार है, यानी इसकी आवाज़ें 2 बार आएँगी। एक बार तो आपको इससे पहले वाले हर्फ से मिलाना होगा। अब दाल से तो हम मिला नहीं सकते, दाल पे जज़्म है। आइन से मिलाएँगे तो बनेगा वात, यानी दाल की आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। हम ऐसे पढ़ेंगे ना अगर वाद ता, तो ये गलत होगा, शद की आवाज़ नहीं आएगी, ता को हमें मिलाना ही मिलाना है। तो जब हम मिलाएँगे तो बनेगा वाता। क्यों? क्योंकि दा और ता एक ही जगह से प्रोनाउंस हो रहे हैं। पढ़ के देखें दा, ता, ठीक है? सो दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड इन अरेबिक लैंग्वेज वाता। तो यहाँ इसीलिए शद आया है क्योंकि उससे पहले वाले हर्फ पर वाला हर्फ जो है वो दाल है और उसके ऊपर भी जज़्म है, राइट? इसी तरह वअदतु, यहाँ भी वही कंडीशन है और वअदतुम पर भी। बाकियों में नहीं है क्योंकि दाल के बाद नून आ रहा है जिसकी आवाज़ अलग है। ऊपर भी ये कंडीशन नहीं है, ठीक है? तो शद की और कोई वजह नहीं है। आई बिलीव इस तरह के वर्ड्स हमने पहले पढ़े हैं QC1 में। आगे बढ़ते हैं। सिंपल, हल वादा, क्या उसने वादा किया। आज भी मैं आपको अरबी बोलचाल की प्रैक्टिस में बिल्कुल कॉल नहीं करूँगी क्योंकि हमने आज एक नया टॉपिक पढ़ा है और मैंने आपको आपके से बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं की कि आप एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा टाइम दें। उसी में अलिफ हमज़ा पढ़ा है तो आज मैं मेन टेबल की प्रैक्टिस में आपको दावत दूँगी। नेक्स्ट वीक से आप लोग प्रॉपर बोलचाल की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम चलते हैं सिंपली हल वादा, क्या उसने वादा किया? नाम वादा, जी हाँ, उसने वादा किया। हल वादू, नाम वादू। हल वादता, नाम वादतु। हल वादतुम, नाम वादना, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने बनाना है मुदारे। ये भी एक इंटरेस्टिंग सा चैलेंज होता है कि मैंने आपको बताया पहली बात कि आपको इन 4 अबवाब में से एक बाब पता करना है। अभी तक हमें वादा का बाब नहीं पता, राइट? सो अ, वादा 3 हर्फ हैं और ये अबवाब ज़ाहिर है 3 हुरूफ हैं तो इनमें से एक को वो कॉपी करेगा। समिअ वो हो नहीं सकता क्योंकि वादा सब पे ज़बर है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ऑप्शन ही नहीं रही हमारे पास। इन 3 ऑप्शंस में से ये भी हो सकता था, अगर वो फ़तह पर हो, नसरा पर ये भी और ज़रबा पर ये भी। लेकिन अरबों ने इसको डिसाइड किया कि असल में ये ज़रबा के सेट में से है। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? वादा यौइदु, यही बनता है ना? इसके हिसाब से ज़रबा वादा, यदरिबु यौइदु, बनता तो यही है, लेकिन अरबों ने यहाँ से वाव को हटा दिया। अब उसकी 2 वजूहात आप समझ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आसानी के लिए, उनकी ज़ुबान है, दे कैन डू इट। जो अरबी सीखते हैं, उनको अरबी को समझना पड़ता है, जैसे जो उर्दू सीखते हैं, उनको उर्दू समझना होती है। जो अरबी सीखते हैं, उनको अरबी वैसे ही समझनी होती है। सो समझ लें इस बात को कि वाव चला गया आसानी के लिए भी और इसलिए भी क्योंकि हमने कहा था कि वो कमज़ोर है, कभी भी चला जाएगा, आप ये भी ज़हन में रख सकते हैं। वाव चला गया तो बन गया याइदु, इसका मतलब है ये हमारे मुदारे का पहला लफ्ज़ बन गया। कमिंग टुवर्ड्स दिस पार्ट, तो एक बात तो याद रख लें कि ये इसका बाब है ज़ाद यानी ज़रबा, यानी इसमें ज़ेर का गलबा होगा। जैसे ज़रबा में यदरिबु, इदरिब ऐसी चीज़ें थी, ठीक है? सिंपल, याइदु वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदु आप वादा करते हैं, आइदु मैं वादा करता हूँ, ताइदूना आप सब वादा करते हैं, नाइदु हम वादा करते हैं। बोलचाल में भी आप जो बात करेंगे तो बिल्कुल माज़ी की तरह से प्रैक्टिस आएगी। हल याइदु, नाम याइदु एंड सो ऑन। हाँ, ये थोड़ा चैलेंज होता है। इसको भी वैसे हमने बहुत प्रैक्टिस किया है QC1 में। क्या वो वादा करता है ज़ैद से? ठीक है, ज़ैद वादा नहीं कर रहा, क्योंकि ज़ैद के आखिर में 2 ज़बर है। 2 पेश होती तो ज़ैद वादा कर रहा होता, ठीक है? तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, इससे कोई और वादा कर रहा है। तो हम कहेंगे क्या वो वादा करता है? नाम याइदु ज़ैदा, तो फिर इसका मतलब है जी हाँ, वो वादा करता है ज़ैद से। इसी तरह से बाकी प्रैक्टिसेज़ इसकी होंगी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा चैलेंज हमारे पास होता है अम्र बनाना। माज़ी मुज़ारे तो हो गया, ठीक है? सो वादा याइदु से अम्र बनाने के लिए आपको मुदारे का एक लफ्ज़ पिक करना है। मैं वापस जा रही हूँ मुदारे के टेबल पर। कौन-सा वर्ड है वो?
ये वाला वर्ड, ये आप देख रहे हैं थर्ड लफ्ज, मुदारे का थर्ड सीगा, ताइदू। हमेशा मुदारे का थर्ड सीगा पिक करेंगे यहाँ पर, जिसका इशारा ये है, आप वादा करते हो, एक शख्स को कहा जा रहा है जो सामने है, इसी को ताइदू को हमने पिक किया अम्र बनाने के लिए। यू कैन सी, ये देखें ताइदू, ताइदू के साथ हमने करना क्या है, अम्र में ता को हटा देना है, क्योंकि ता तो मुदारे में था ना, याद है ना आपको, मुदारे में क्या था, या, फिर ता, आ, फिर ता, और फिर ना, ये शुरू में आवाजें थी, इसको हम फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये मुदारे का काम था, तो ता को तो हम सबसे पहले यहाँ से हटा देंगे, उसका अम्र में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये मुदारे नहीं है। ठीक है, हमारे पास ईदू बचा ना बाकी, ईदू, राइट। तो ईदू पर से हमने क्या किया, पेश को डील करके जज्म बना दिया, यानी पेश को स्टॉप कर दिया, यहाँ पर साकिन जिसको हम बोलते हैं या जज्म बोलते हैं, तो हमारे पास सिंपली बन गया ईद, राइट, वेरी सिंपल। और क्या बना, ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू तुम सब मत वादा करो, राइट। और अरबी बोलचाल में आपको पता है, जब अम्र में कोई बात कही जाए बोलचाल में, जैसे कहा जाए ईद तुम वादा करो, तो आप क्या कहेंगे जवाब में, उर्दू में भी अगर कहा जाए तो आप कहेंगे ओके मैं वादा करता हूँ, या आप कहेंगे मैं वादा करूंगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये मुदारे से आ रहा है, करता हूँ, करूंगा। तो आप हमेशा अम्र का जवाब मुदारे से देते हैं। ईद वादा कर, आईदू मैं वादा करता हूँ, ये मैं वादा करूंगा। ईदू आप सब वादा करो, और आप जवाब देंगे नाइदू हम वादा करते हैं या हम वादा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अम्र में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे टेबल का लास्ट पार्ट, जिसमें 3 ऐसे लफ्ज़ हैं जो फ़ेइल के टेबल में हैं, लेकिन वो इस्म है, क्योंकि काम करने वाला भी कोई है, कोई शख्स कोई है, और जिससे असर पड़ रहा है, वो भी कोई है, यानी वो काम तो नहीं है, कोई इंसान, कोई चीज़, कुछ है, तो वो भी इस्म है, और फिर काम का नाम, वो भी नाम है, राइट? तो क्या होगा, वाहिदुन जैसे होता है फ़ाइलुन, या ज़ारिबुन, हमने पढ़ा ना, ज़रबा का पैटर्न है ये, बाब है। ज़रबा से ज़ारिबुन था, मारने वाला, तो वाइदुन वादा करने वाला। इसी तरह हमने जैसे पढ़ा मदरूबुन, जिसको मारा जाए, मारा गया, तो यहाँ है मौऊदुन, जिससे वादा किया गया। कोई तब्दीली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वादुन वादा करना, जैसे था ज़रबुन मारना। वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी। ठीक है, और इस तरह से इनकी प्रैक्टिस हो सकती है, बट सिंपली कमिंग टुवर्ड्स मुअन्नस, वआदत, इसमें होता क्या है, मादी में जो पहला लफ्ज़ होता है, पहला सीगा, सिंपली उसके आखिर में ता लगा दी जाती है जज़्म के साथ, तो बन जाता है वआदत, फ़अलत, नसरत, ज़रबत, समिअत, राइट? तो वो मुअन्नस बन जाता है, यानी अत की आवाज़ मुअन्नस में होती है, अत आखिर में। वआदत यानी लेफ्ट हैंड से उस औरत ने वादा किया। मुदारे में तो और भी सिंपल है, यानी वही तीसरा सीगा जिसको हमने अमर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी ताइदू, उसको हमने दोबारा से वहां से उठाकर कॉपी करके मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नया नहीं बनाना पड़ता। तो ताइदू वो औरत वादा करती है, सेम हो गया। अब यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, हैंड रेज कीजिए, आप में से कौन इस टेबल को पढ़ेगा। एंड आई एम टेलिंग अगेन, मैंने आप लोगों के लिए ही टाइम को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, क्योंकि मेरा टॉपिक भी ज़्यादा था, लेकिन इसलिए आपको ज़्यादा मौका मैं आज नहीं दे पा रही हूँ। एनीवेज़ कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेसन से हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टर हमारा, आप टेबल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। सिस्टर एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ अरबी में सुना दीजिए मैम प्लीज। कौन सा वाइनो वाला? वादा, पूरा टेबल। ठीक है, वादा, वाइदो। मैम उर्दू में पढ़ूं? सिस्टर सिर्फ अरबी में सुनाइए, लेकिन जबर जेर का ध्यान रखिए। दिस इज नॉट वाइदू, दिस इज वादू, राइट? ठीक है मैम। फिर से पढ़िए वादा, जी। वादा, वादू, वाता, वातु, वातुम, वादना, वादत, वादत, ओके। वाद, याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु, ताइदु। आणि मेम अद अम्र, अमर वाला इंद, इंदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइदुन, मौ
موعود وعد. वादुन. ठीक है, आपने जरा जबर जेर की और प्रैक्टिस करनी है. सिस्टर बहुत अच्छा टेबल पढ़ा है ताकि वो जबर जेर क्लियर हो, प्रोनाउंसिएशन. और वैसे मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी, अगर आपने तजवीद की शॉर्ट वाली क्लास भी लेनी है, अटेंड करनी है, वो भी इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट और छोटी सी आधे घंटे की क्लास है संडे को, तो आप उसको ज्वाइन जरूर करें. छोटा सा एक कोर्स है ताकि आपके जो तजवीद बेसिक एटलीस्ट ठीक हो जाए इंशाल्लाह. अच्छा, एक चीज और, दिल बर्दाश्ता ना हो, आप अगर सब प्रैक्टिस करना चाहें तो क्लास एंड होने के बाद आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को हम जल्दी फ्री करें. अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड शॉर्ट टेबल नहीं, सिस्टर नादिया तनवीर, आप हमें शॉर्ट टेबल सुना दें वादा का. जी. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. वादा याईदु, वादा याईदु इद, वाइदुन माऊदुन वादुन. वादुन, दैट्स राइट. और आपको पता है कि ये कहाँ से लफ्ज पिक किए जाते हैं? एक फेल मादी का पहला, फेल मुदारे का पहला, फेल अम्र नहीं का पहला, और फिर तीन जो फाइल, मफऊल और फेल होते हैं उनको मिलाकर शॉर्ट टेबल बनता है ताकि आपको बड़ा टेबल बनाने में आसानी हो. इनकी एक्सरसाइजेज आज वही बात कि ये जो अलिफ और हमजा जैसा टॉपिक मजीद आगे आपके किसी लेसन में नहीं आएगा. सो आज भी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे और ग्रुप आपके पास स्ट्रांगली मौजूद है जहां आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. बट आई वांट कि यहाँ कोई सिस्टर मुझे वादा की तरह वाजदा का टेबल बनाने की प्रैक्टिस करें. कोई बनाना चाहेगा? हैंड रेज करें. सिस्टर वर्दा से कहते हैं वो कोशिश कर लें. आप इसके लिए काम भी कर सकते हैं, अपने सामने वादा का टेबल ओपन कर सकते हैं. सिस्टर वर्दा, आप माइक ऑन करें, पॉसिबल फॉर यू. और मिस्टेक होगी तो मैं आपको हेल्प आउट करूंगी. जी. वादा के पैटर्न पर आपने वजदा बनाना है. मादी सुनाइए. जी. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम वर्दा, बताइए. जी वर्दा, आपकी आवाज नहीं आ रही डियर. चलो मैं आपको बताती हूँ. वादा, वादू, वादता, वादतू, वादतुम, वादना, वादत. जी, वजदा का टेबल बनाइए. सिस्टर वर्दा, आपका माइक बंद हो गया डियर, जल्दी से ऑन कर लें दोबारा से. जी. वजदा, वजदू, वजदता, वजदतु, वजदतुम, वजदना, वजदत. माशाल्लाह, यजिदु, बेहतरीन. ओके, यजीदू. जी. यजिदु, यजिदूना, तजिदु, अजिदु, तजिदूना, नजिदु, मुअन्नस के लिए तजिदु, तजी. अगेन राइट. जिद, माशाल्लाह. अम्र. जिद, जिदु, ला तजिद, ला तजिदु, वाजिदुन, मौजूदुन, वुजूद. माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. आपने तो करके दिखा दिया. देखें, तो इसका मतलब है कि अपने आप को, अपनी एफर्ट को अंडर एस्टिमेट मत करें. जो मेहनत आपने पहले की है इसका मतलब आप बहुत सीख चुके हैं. और जो बाकी कंफ्यूजन हैं वो वक्त के साथ आप सीख लेंगे. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए. हम अब यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं अपने दूसरे टेबल की तरफ. आज का हमारा जो दूसरा टेबल है जिसमें हमारी कोई स्टार्ट की फॉर्मेलिटीज इसलिए कहूंगी क्योंकि वो अभी हमने पढ़ लिया ना कि कमजोर फेल कौन सा होता है और उसमें कौन सी 3 बातें ज़हन में रखनी है. तो उन बातों को तो हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, राइट? क्योंकि अभी मैंने आपको वो बताई हैं. सिंपल ये बताऊँगी कि अभी जो हमने एक और टेबल की प्रैक्टिस करनी है, वादा वजदा के बाद, वो है क़ाला. आप सबको पता है कि ये भी कमज़ोर फ़ेल है और इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं. क़ाला, एक बात इसके बारे में जान लें, इसकी वैल्यू बहुत है. क्यों? ये ऐसा वर्ब, ऐसा फ़िअल है जो कुरान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है. सो ये आपके क्विज के लिए भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है. तो खुशी की बात है कि हम इसको आज सीख लें. कुरान के सबसे ज़्यादा अफ़आल के तौर पर आने वाला जो लफ्ज़ है वो है क़ाला. 17-15 टाइम्स कुरान में आया है. ये सब हमने जान लिया है, 3 बातें भी हमें पता है. अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. और यहाँ से आप देख लें सुभान अल्लाह कि हमने अभी पहली टाइप पढ़ ली है जिसके पहले जिस फ़ेल में पहला हर्फ कमज़ोर है. अब हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे जिसके दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर होता है. ठीक है? यानी कि क़ाला ज़ादा, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. यू कैन सी अब हम क़ाला के वर्ड को पिक करते हैं. दरमियान वाला हर्फ कमज़ोर है और मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा आने वाला फ़ेल है. इसका मतलब है उसने कहा. कुल हुवल्लाहु अहद. जी, तर्जुमा क्या है इसका? कौन बताएगा? आप लोगों के लिए मैं ऑन कर रही हूँ तो आप लोग अपने ज़रा माइक ऑन कर लें, अगर आप करना चाहें तो. जी. कुल हुवल्लाहु अहद.
آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. کہو کہ اللہ ایک ہے. That's right. کہو That's اللہ right. ایک ہے. ماشاءاللہ. So کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. سورۃ الاخلاص کی پہلی اسٹیٹمنٹ. اوکے. تو ڈیئر سسٹرز آپ دیکھ لیں قالا کا ٹیبل کس طرح سے یہاں موجود ہے. ایک چیز مجھے یہاں بتا دیں, یہ قالا میں قاف کے بعد جو اسٹریٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ الف ہے یا حمزہ ہے؟ جلدی الف سے ہے. چیٹ باکس میں بتائیے. چیٹ باکس میں بتائیے. چیٹ باکس میں جو کوشچن چیٹ باکس کے لیے ہیں وہ پلیز وہیں بتائیں. الف ہے. اوکے دیٹس رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک رول بتایا تھا, اگر کسی بھی کمزور فعل کے ماضی کے پہلے لفظ میں آپ کو یہ اسٹریٹ لائن یعنی الف نظر آئے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے روٹ لیٹر میں الف نظر آ رہا ہے لیکن واو یا یا میں سے کوئی ہے, کیونکہ الف نہیں ہو سکتا ماضی کے پہلے سیغے میں. یہ بات سمجھ لی. اس کا مطلب ہے الف کے علاوہ کچھ اور ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم جان لیں گے مضارع کے ساتھ کہ وہ کیا ہے. ابھی آگے بڑھتے ہیں. قالا اس نے کہا, قالو ان سب نے کہا, قلتا آپ نے کہا, قلتو میں نے کہا, قلتم آپ سب نے کہا, قلنا ہم نے کہا. سمپل. قالا قالو قلتا قلتو قلتم قلنا. اور اس کی پریکٹس ویری سمپل, بول چال کی جتنی زیادہ کرتے ہیں اتنے زیادہ ٹیبل جو ہیں وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں. اور یہاں کیا ہے, حل قالا خیرن, کیا اس نے کہی اچھی بات؟ جی ہاں اس نے کہی اچھی بات. اسی طرح نعم حل قالو خیرن, نعم قالو خیرن, اینڈ سو آن the practice. انٹرسٹنگ. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چاروں میں سے کس پر ہے. سمع پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قائلہ نہیں ہے, اس میں کوئی زیر نہیں ہے. تین آپشنز ہیں, فا نون ضاد. اگر فا پر ہوگا تو یقالو بنے گا, قالا یقالو. نون پر ہوگا تو قالا یقولو بنے گا, ضاد پر ہوگا تو قالا یقیلو بنے گا. رائٹ. تو عربوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ یقولو ہے. رائٹ. تو کیا ہے یقولو. تو سمپلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر جو ٹیبل ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از پیٹرن ہوتے ہیں باب کے. تو یہاں آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں چیٹ باکس میں کہ نصر ینصر قال یقول, ان کی آوازیں سیم میچ ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہاں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ دونوں سیم ہیں؟ جلدی سے بتائیں چیٹ باکس میں, جلدی سے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل سیم زبر زیر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ ہری اپ ڈیئرز. نہیں آ رہے. سسٹر صدف کہہ رہی ہیں کہ نہیں آ رہے. بالکل درست جواب سسٹر صدف نے دیا ہے کہ لیکن ابھی ایک فائن. وردہ بھی کہہ رہی ہے, ہمارا بہت ساری سسٹرز کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہاں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ فرسٹ والے میں آپ نے دیکھا کہ جو الف تھا وہ اصل میں الف نہیں ہے, وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ اور بھی چیزیں آہستہ آہستہ ہم سمجھیں گے. ابھی میں آپ کو سمپلی بتا دیتی ہوں, کیونکہ الف نظر آ رہا ہے اس کی جگہ واو یا یا ہے. پہلی بات تو ہم نے یہ کر لی. دوسری بات پتہ چل گئی یہاں مضارع میں کہ اصل میں کیا تھا, واو تھا. تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں. قاف, واو اور لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. قاف الف لام نہیں ہے. انٹرسٹنگ ہے نا, جب کوئی ایک ہی جیسی چیز چل رہی ہو تو انسان تھوڑا بور ہو جاتا ہے. تو نیا سا ٹویسٹ آیا ہے تو اچھا لگ رہا ہے کہ ہم نے پہلے رول پڑھا تھا, اب پتہ چل گیا کہ کیونکہ نصرہ کے پیٹرن میں ہے اور یہاں یقولو میں واو آ رہا ہے, اٹ مینز کہ قالا بھی اگر لکھا ہو نا, کوئی آپ سے پوچھے قالا کے روٹ لیٹرز تو آپ کہیں گے قاف واو لام. یہ بات آپ کو یاد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری بات, یہ میچ نہیں ہو رہے نا. کیوں میچ نہیں ہو رہے؟ اصل میں یہ میچ تب ہوگا نصرہ سے جب یہ ایسے ہوگا روٹ لیٹر کے حساب سے. یو کین سی قا و لا, نصر قا و لا. اب تو کلیئر ہے نا آپ کو. اسی طرح ینصرو میں یہ کیا ہوگا, اگر ہم اس کو دیکھیں اس طرح سے, یو کین سی یک و لو. تو یہ اصل میں یہ ہیں قوالا, رائٹ, اور یک و لو. اب تو میچ ہو رہا ہے نصرہ ینصرو, لیکن اس کی بھی ریزنز ہیں. عربی میں عربوں نے اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ کو میں صرف ماضی میں بتا سکتی ہوں شارٹلی, اور اس کورس کے اندر وہ یہ کہ اکثر آپ جانتے ہیں ہمیشہ زبر جو ہوتا ہے نا اس کی دوستی ہوتی ہے الف کے ساتھ.
जबर की दोस्ती किससे होती है? अलिफ से, क्योंकि जबर जिस पे आए उसकी आवाज भी आ होती है, अलिफ आए तो भी आवाज आ होती है, का, मा, राइट। इसी तरह जैसे पेश हो, पेश की दोस्ती है वाव के साथ, ऊ की आवाज आती है। जेर की दोस्ती है या के साथ, ई की आवाज आती है। तो यहाँ पर क्योंकि जबर की दोस्ती अलिफ से है तो उन्होंने यहाँ पर इसको क़ा बनाया है। अब आप कहेंगे यकूलू में भी वजह बताएं कि यकूलू क्यों आया यकवालू से? इसकी भी रीजन है, बट वो इतनी टेक्निकल है कि वो आप इस लेसन से हट के आपको कहीं और जाना पड़ेगा। सो अभी आप इसी पर तहम्मुल से समझें कि रीजन मौजूद है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये इस पैटर्न पर है और लफ्ज चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, और वैसे भी कमजोर है ना, इधर से उधर होते हैं। अभी के लिए आपने इतना ही समझना है और तहम्मुल से इसको याद करना है, ठीक है? विद द पैसेज ऑफ टाइम नेक्स्ट लेवल्स पर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सिंपली क्या बना? क़ाला एंड यक़ूलू, ठीक है? बस इतनी सी बात और हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि मुदारे का टेबल हमारा कैसा है। यक़ूलू, आप देखते हैं ये सारे लफ्ज़ कुरान में हम देखते हैं ना। यक़ूलू वो कहता है, यक़ूलूना वो सब कहते हैं, तक़ूलू आप कहते हैं, अक़ूलू मैं कहता हूँ, तक़ूलूना आप सब कहते हैं, नक़ूलू हम सब कहते हैं। आई नो सिस्टर्स 4 o'clock हो गया। जैसे मैंने सैक्रिफाइस किया है, विदाउट ब्रेक आपको पढ़ा रही हूँ। आप चंद मिनट्स, मुझे यकीन है, मज़ीद यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद सिर्फ़ प्रैक्टिस वाली अगर कोई सिस्टर्स हो वो रह सकती हैं। बाकी चली जाएँगी तो थोड़ी देर आप मुझे मज़ीद दें ताकि लेसन मुकम्मल हो जाए। जी, तो इसके मुदारे में भी सेम प्रैक्टिस होती है। अगर आपसे कोई उर्दू में कहे, क्या वो कहता है? तो आप कहेंगे जी हाँ, वो कहता है। क्या वो सब कहते हैं? जी हाँ, वो सब कहते हैं। क्या आप कहते हो? तो आप कहेंगे जी हाँ, मैं कहता हूँ। क्या आप सब कहते हो? जी हाँ, हम सब कहते हैं। तो इसी तरह से अरबी की जो गर्दान है, जो टेबल है, हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो ये देखिए सब सिस्टर्स और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि क़ाला मादी का पहला सीगा है, यक़ूलू मुदारे का पहला सीगा यानी चाबी है, तक़ूलू कहाँ से आया है? अभी मैंने बताया था टेबल में आपको। तक़ूलू मैंने कहाँ से पिक किया है? कैन यू प्लीज़ टेल इन चैट बॉक्स? जी, तीसरा, राइट मैं समझ गई। सिस्टर मदीहा कह रही है मुदारे का तीसरा सीगा, वेरी नाइस। इसका मतलब है आप चीज़ें समझ भी रहे हैं, आपको याद भी हो रही हैं। दैट्स ग्रेट, ठीक है? तो यहाँ से हमने यक़ूलू, यक़ूलूना, तक़ूलू पिक किया है, तक़ूलू। अब इस तक़ूलू के साथ हमने क्या करना है कि ये अम्र बन जाए। तक़ूलू क्योंकि मुदारे है, क्यों मुदारे है? इस पे मुदारे का फ़ॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ता, ता, ये मुदारे का फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो ता को हमने हटा दिया, पहली चीज़ तो यही है। हटा दिया ता को। उसके बाद रह गया कूलू। अब कूलू में हमें बताया गया था कि अम्र में क्या होता है, आखिरी वाली जो पेश है उसको हम जज़्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बन जाएगा कूल, क्या बन जाएगा? कूल। और वाव क्योंकि कमज़ोर है, तो जब अम्र की बात होती है ना हुक्म देने की, वो इतना कमज़ोर है कि वो डर के भाग जाता है, तो वाव भी भाग गया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अनदर ट्विस्ट यू कैन सी। तो बन गया कुल। यकीनन आप में से काफ़ी लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे कि कैसे-कैसे टीचर घुमा के बता रही हैं, बट दैट इज़ अमेज़िंग और हम मज़े से सीख रहे हैं इंशाअल्लाह। जो भी चैलेंज है अल्लाह की खातिर खुश होके सीख रहे हैं। ना बोर होना, ना परेशान होना है। घबराना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? तो बन गया कुल और कुल इतना आसान है क्योंकि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक हमने पढ़ा हुआ है। तो ये तो अंडरस्टूड है, हमें भूलेगा ही नहीं। क़ाला के टेबल में कुल नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है? तो क्या बना? कुल आप कह दो, क़ूलू आप सब कह दो। ला तकुल आप मत कहो, ला तकुलू आप सब मत कहो, राइट? उसके बाद अरबी बोलचाल में जब आपको कुछ कहा जाए अम्र में तो आप जवाब मुदारे में देते हैं। कुल कह दो तो आप कहेंगे अक़ूलू मैं कहता हूँ, मैं कहूँगा। क़ूलू आप सब कहो, नक़ूलू हम कहेंगे। इसी तरह से नहीं में भी होगा। यू कैन सी पूरी प्रैक्टिसेज़ हैं और यस आखिरी हिस्सा आ गया आज के दूसरे टेबल का भी और इसमें क्या है? क़ाला में जो फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन और फ़िअलुन ये जो आखिरी 3 अल्फ़ाज़ हैं, वो कैसे आ रहे हैं? क़ाइलुन कहने वाला, मक़ूलुन जो कहा गया एंड क़ौलुन कहना, ठीक है? तो यहाँ आपको नई चीज़ नज़र आ रही होगी कि एकदम से हमज़ा आ गया तो आई टोल्ड यू कि हमज़ा बहुत लाडला है, तो ये कहीं-कहीं आ जाता है। वैसे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हर्फ़ है, लाडला भी बहुत है, लेकिन कहीं-कहीं कभी-कभी कमज़ोर हर्फ के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर हमज़ा आ गया तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे और क़ाइल
कायल ये लफ्ज है, काइलुन प्रॉपर पढ़ें तो ज्यादा अच्छी बात है पूरा, ताकि याद रहे। क्योंकि ये इस्म है, इस्म फाइल, राइट। तो काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, और ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, हमने टेबल भी देखा था एंड बाब भी देखा था। तो कौलुन कहना। कमिंग टुवर्ड्स स्टेटमेंट्स, क्या होगा ये? हल अंत काइलुन, क्या आप कहने वाले हो, यानी फाइल, राइट। आप कहेंगे अनाम अना काइलुन, जी हाँ मैं कहने वाला हूँ। और अगर जमा हो, हल अंतुम काइलूना, जमा के लिए ऐसे, फाइल की जमा है ना, क्या आप सब कहने वाले हो, तो आप कहेंगे नाम नहनु काइलूना, जी हाँ हम सब कहने वाले हैं, राइट। इसी तरह से बाकी प्रैक्टिसेस हैं। और खातून के लिए कह सकते हैं या मुअन्निस के लिए सिंपली मादी के पहले लफ्ज के आखिर में हमने ता लगा दी, बन गया कौलत, उस औरत ने कहा। मुदारे में से तीसरा सीगा उठाकर एज इट इज लिख दिया तो बन गया तकुलु, वो औरत कहती है। इससे ज्यादा आसान तरीका क्या होगा समझने का, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर टेबल दोहराने के लिए हमारी एक सिस्टर आ जाए और देखते हैं कि कौन सी सिस्टर आएंगी। हैंड रेज कीजिए ताकि हमारा लेसन जल्द से जल्द एंड हो जाए। ओके, सिस्टर सदफ अल्ताफ, माइक ऑन करें अपना और मुझे बताएं, पहले टेबल आपने तो नहीं पढ़ा ना सिस्टर? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। दैट्स राइट, तो आप सुनाइए प्लीज, सिर्फ कौला, अरबी में। ठीक है। कौला, कौलू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, कौलत। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, तकूलू। कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू। क़ाइलुन, मकूलुन, कौलुन। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। चलिए ऐसा करते हैं हम, सिस्टर सुमेरा आप अपना माइक ऑन कर लें और मुझे 6 चाबियां बताएं, इनमें से कौन सी हैं? कौला, यकूलू, कुल और काइल, ये तो और ये 4 हो वाली गई। अकूलू। अकूलू कहाँ है सिस्टर? अकूलू भी है। कहाँ है, कौन से वाले पार्ट में? माजी में, मुदारे में, कहाँ? मुदारे में? मुदारे में तीसरा सीगा अकूलू। मुदारे में तीसरा सीगा, वो तो तकुलू है। क्या ये चाबी है? नहीं सिस्टर, चाबियां ये हैं जो रेड कलर में सर्कल हुई हुई हैं, हाईलाइट की हुई हैं। पहला सिस्टर, लफ्ज मुझे मादी का, कौला, वही यकूलू, जी कुल, ओके, काइलुन, मकूलुन, कौइलुन, मौकूलुन और कौलुन। कौलुन, लास्ट ये वन। आपने याद रखना है, ठीक है। ये QC 1 में भी हमने ठीक पढ़े हो थे, गया। बस आपने नेक्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिस में रखना है। ये देखें, जैसे हमें सिस्टर ने भी बताया, ये सारे 6 सीगे हमारे सामने आ गए हैं एंड यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ इट। और प्लीज आप इसको, यहाँ मैं एक बात अभी ऐड कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्कबुक किसको चेक करवाएं। अगर वैसे तो इतना कॉन्फिडेंटली आप इतने ध्यान से लेक्चर को सुने या बाद में रिकॉर्डिंग देखें, स्लाइड देखें कि आपको यकीन हो कि हमारा आंसर सही है, लेकिन फिर भी आपको अगर जरूरी महसूस हो कि आपने किसी को चेक करवाना है, क्योंकि शर्त वैसे जरूरत तो यही है कि आप एंड में पूरी बुक एक साथ शेयर करें, लेकिन अगर कोई खास पोर्शन चेक करवाना है तो आप उसको सिर्फ चेक करवाने के लिए वर्कबुक में को आप ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, ताकि दूसरे लोगों को भी खुद एफर्ट करने का मौका मिले। अगर कोई ऐसे लोग हों तो आप मुझे अपने नाम सेंड करें कि हमें वर्कबुक वक्तन फवक्तन कोई खास क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही चेक नहीं करेंगे जो सिंपल है, वो आप खुद चेक करेंगे। जो टेक्निकल चीजें हैं वो चेक करवानी है तो मैं खास AQTs को के नंबर्स आपको दूंगी, आप उन्हें सेंड किया करेंगे एंड दे विल सेंड यू एक्चुअल पेज, ताकि आप उसको देख सकें, ठीक है। तो चेक कराने का ये तरीका होगा, बट कोई भी ग्रुप में नहीं भेजेगा। आप इसको एफर्ट करो, आपसे चाहे सही बने गलत बने, पहले जुमला बनाओ फिर AQT से पूछें। दिस इज नॉट द वे कि आप कहें कि हमें ये पूरा बना कर दें, चाहे आपका जुमला पूरा गलत हो, बट यू हैव टू पुट योर एफर्ट। अब हम आते हैं आज का एक और चैलेंज, ताबा, उसने तोबा की। हमारे बहुत ही काम का लफ्ज है, तोबा बहुत जरूरी है। कौला के फ्रेंड्स में से है ये, तो कौला के टेबल को ज़हन में रखते हुए ताबा हम सुनते हैं अपनी सिस्टर से। कौन सी सिस्टर जिन्होंने अभी तक कोई टेबल ना सुनाया हो? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, हरी आप ट्राई करें, आपके मिस्टेक्स मैं ठीक कर दूंगी। सिस्टर सुमेरा आप सुना चुकी है ना सिस्टर? हिम्मत नहीं कर रहा है कोई, दैट्स नॉट राइट।
सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर मैं दे दूंगी सिस्टर सुमेरा और वर्दा को। करेज देखें कि उन्होंने गलत सही जो भी उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी मैं जी सुनाना सिस्टर चाह नादिया, रही आप सिस्टर सदफ सुनाना चाह रही हैं? जी जी नाम मुझे बताइए। पता नहीं कि ठीक होगा या नहीं। जी सदफ सदफ सुना। सिस्टर सदफ आप भी हैंड रेज जरूर किया करें। अभी आपका माइक कौन है, आप सुना दीजिए। जी मादी। जी ये है ताबा 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 तो ऊंचा बोलिए। ताबा ताबू तब तबका तबदू तुबता। तबतुम तबना या तौबा या तौबून या तौबूना ओके आगे नहीं समझ आ रहा क्योंकि ता लगाते हैं हम और ये ता से ही है। ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आपने इतनी एफर्ट पुट की है। हम एक और सिस्टर को भी मौका दे देते हैं कि वो एफर्ट कर लें थोड़ी सी। सिस्टर समारूख, आप अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम जी वालेकुम। सिस्टर। मैं जी ट्राई कर वालेकुम लेती अस्सलाम। हूँ कि ठीक होता है कि नहीं होता। जी नो वरीज, सुनाइए। ठीक है। ताबा ताबू तुबता तुबतुम तुबतू तुबतुम तुबना। उसके बाद है मुदारे में फीमेल के लिए भी अभी यतूबू। बता दें, फीमेल जी के लिए अभी बता दें। मोनस के लिए जी वननेस, सॉरी, होगा ताबत। ताबत ताबत ताबत, यस। ताबत। ठीक है, अब हम मुदारे पे आ रहे हैं। यतूबू यतूबूना तबूतु ततूबु ततूबु ततूबू अतूबू ततूबूना नतूबू और तीसरा सीगा विल बी रिपीटेड। ट्राई ततूबू ट्राई ट्राई। ततूबु अगेन, ततूबु अगेन। ठीक है, बिल्कुल। उसके राइट बाद राइट, फेल अमर तु यस। तुबू ला ला तबू ततुब, ला ततुब, ला ततुब ला तबू। ततूबु। सिस्टर ये ऐसे है ना, कुल कुलू, तुब तुबु, ला तकुल ला तकुलू, ला ततुब ला ततुबु। ऐसे एक्चुअली यहाँ पे ता दो मिल रहे हैं ना, तो इसलिए आप कंफ्यूज एक्चुअली हो रही हैं। एक्चुअली वो ता ही हाँ कंफ्यूज कर रही है। यस, क्योंकि देखिए जहन इस तरह क्लियर होगा, एक ता ताबा की है और एक ता फॉर्मूला की है, तो इसलिए दो ता हम सिंपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके जी। कायलुन मकूलुन से क्या बनेगा यहाँ? ओके, इसका इसम फाइल होगा ताइबुन ओके, मौतूबुन और मतूबुन, ठीक है, तौबतुन। अच्छा यहाँ मैं एक चीज बता देती हूँ, सिस्टर ने माशाल्लाह पहली बात तो ये कि बहुत ही बेहतरीन सुनाया है, और जितने भी लोग एफर्ट कर रहे हैं थोड़ी ज्यादा, अल्लाह ताला सबसे राजी होंगे। एफर्ट ही तो देखी जाती है। तो फाइल तो आपने पढ़ लिया ना, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। ताइबुन, ये जो मफूल है ना, नॉर्मली आपके लिए यही है कि आप यहाँ लिखें नथिंग। कई कई टेबल्स ऐसे आएंगे जिसमें मफूल नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि फाइल के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत यानी मफूल की जरूरत नहीं पड़ती कुछ जगहों पर। जैसे अगर मैं या आप तौबा कर रहे हैं तो इसका किसी और पे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ही फर्क पड़ेगा, किसी और को असर, किसी और पे असर नहीं जाएगा। तो आसान आपके लिए ये है कि आप मफूल की जगह डैश लगा दें, या कह दें नथिंग सुनाते हुए, या कुछ नहीं, इस तरह के लफ्ज। अगर आपको फिर भी ग्रामेटिकली समझना हो और आपको यहाँ लिखना हो तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मतूबु, मतूब के साथ आपको इलैह लिखना होगा, राइट? और वो क्यों होगा, ये एक लंबी बहस है। ये भी मैं आपको सिर्फ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये भी मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आपके ज़हन में आ रहा होगा कि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बता दिया जाए तो अच्छा है। तो ये ज़हन में रखें कि इस तरह से मतूबुन और इलैह साथ ज़रूर आएगा, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर मफरूल ना पढ़ा जाए क्योंकि टेक्निकली आता नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे ताइबुन, नथिंग, तौबतुन, यानी इस पूरे टेबल में किस का की बात हो रही है, काम जो हो रहा है उसका नाम क्या है? तौबतुन, तौबा करना। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जबकि मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया। हमारा ये काम मज़ीद आधा घंटा आगे जाना था, हमने कोशिश की है कि जल्दी हो जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सिर्फ 2 सेशंस में हमने ये पहला पोर्शन वहबा वादा और दूसरे हिस्से में से काला यकूलू का टेबल भी पढ़ लिया। सो काला यकूलू का बाब है नसरा, याद रखिए। वादा जो हमने अभी पहले पढ़ा था
اس کا باب ہے دوہرا باب. ٹھیک ہے, یعنی یہ فرنٹ ٹیبلز ہیں ایک دوسرے کے. الحمدللہ اپنے ہوم ورکس کرتے رہیں, QC1 میں آپ نے سیکھے ہیں, اور پریکٹسز جاری رکھیں. اللہ سے دعا مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور یہاں موجودگی پر آپ کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور بے تحاشا بے حد انعامات سے نوازے, اور ہم سب کی تمام مسائل کو حل فرمائے, اور ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین کر دے, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہمارے جو مسلمان بہن بھائی مشکلات میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. تمام مسلم امت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں ایمان پر سلامت رکھے, ایمان پر زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارے پیرنٹس پر اپنا کرم کرے, ہمیشہ ان سے ہمارے پیرنٹس سے راضی ہو, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا, ابھی بھی ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں, برکتوں کا باعث ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے سے جڑے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, سب کے لیے. اور جو ہمارا آپس میں کنیکشن ہے وہ تو سب سے معتبر ہے, کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے. تو ہمارے درمیان جو رشتہ ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو. جب اللہ راضی ہو تو پھر سب ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو, آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نا.